Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to start with our 35th lecture. In this particular lecture, we are going to discuss about the cropping patterns of various crops. As you know, this is the third lecture in agricultural geography. Earlier, we have covered the various determinants which determine the status of agriculture in India. Like the first day, we discussed about the institutional determinants. In the previous lecture, we discussed about the infrastructural determinants. And now we are going to discuss about the various cropping patterns as well as certain agricultural practices that are very significant considering the condition of India. So let's see what topics we are going to discuss in today's lecture. We have to discuss today the major crops and their patterns. What all are the major crops grown in our country and what is the pattern? Pattern means their distribution, how they are distributed across the India, across the length and breadth of our country, and why they are distributed in the particular location. That all things we have to discuss under this first topic. In the second topics, we shall discuss about the dryland agriculture. This is a specialized, the various places in India is having a very low rainfall, less than 50 centimeter rainfalls. Those areas are called drylands. So what kind of agricultural practices we are going over there? This is called dryland agriculture. And what is the significance of dryland agriculture? What are the various challenges of dryland agriculture and what more can we do to enhance the status of dryland agriculture in our country? And the third topic would be agroforestry. This is also a very significant kind of practice that we are trying to evolve or we are trying to enhance in our country. So let's discuss one by one. पहले देखते हैं कि कौन कौन से मेजर क्रॉपिंग, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे टॉपिक्स के. तो बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट्स हमें आज डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले तो होगा कि कंसेप्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. ये क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है, राइट? किन किन चीजों पे ये क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड करता है, तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं जो कि इंडिया में मेजरली उपजाए जाते हैं. यहां मेजर कहने का मतलब कि जो क्रॉप्स, हम उन क्रॉप्स की बात करेंगे जिनका इन टर्म्स ऑफ कवरेज और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, दोनों ही टर्म्स में जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत हाई है, तो उन सारे क्रॉप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम उन क्रॉप्स के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, तो उनका रिक्वायर्ड कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है उन क्रॉप्स के लिए और कैसा डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है हर एक क्रॉप के बारे में. ये सारी चीजें हम देखेंगे. उसके बाद हम अपना ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्टली एग्रो फॉरेस्ट्री को. तो चलिए वन बाय वन हम जो है डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न से कि ये क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है. सी, क्रॉपिंग पैटर्न को अगर सिंपल भाषा में अगर हम डिफाइन करें तो ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक फसल का कि कैसे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है. स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लैंड के ऊपर वो कहां ज्यादा फसल उगाया जा रहा है, कहां कम उसकी फसल हो रही है, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है. स्पेशल मतलब along the location, across the locations, across the various regions of our country. Organizations मतलब कि कैसे उसको हम किन किन क्रॉप्स के साथ किस तरीके से हम इसको उगा रहे हैं. तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं. एक्चुअल में अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न को बोले तो ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स है. कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप, और ये पैटर्न जो होगा हर क्रॉप का अपना पैटर्न होता है. राइस का अपना क्रॉपिंग पैटर्न है, व्हीट का अपना क्रॉपिंग पैटर्न है, कॉटन का अपना है. किस किस रीजन्स में ये उपजाए जाते हैं, ज्यादा उपजाए जाते हैं, कम उपजाए जाते हैं, ये सारी चीजें जो है क्रॉपिंग पैटर्न होती हैं हर एक क्रॉप का. तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो कौन कौन सी फैक्टर्स होती है जो किसी भी क्रॉप के क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करती है, राइट? क्यों किसी रीजन्स में हम राइस ही कल्टीवेट करते हैं, वहां व्हीट नहीं करते हैं? क्यों कहीं पे व्हीट ही कल्टीवेट करते हैं, राइस नहीं करते हैं? टी कॉफी हम कल्टीवेशन करते हैं अपने कंट्री में, लेकिन क्यों किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही करते हैं? असम में ही क्यों टी गार्डन है, क्यों दार्जिलिंग में ही टी गार्डन है? टी गार्डन आपको बिहार में क्यों नहीं है, पंजाब में क्यों नहीं है? तो यू मस्ट बी हैविंग सच क्वेश्चंस इन योर माइंड. तो यही चीज ये क्रॉपिंग पैटर्न का फैक्टर बताएगा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स को, कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन को
अलाइन करते हैं, कोई क्रॉप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में क्यों है, दोज आर द फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे पहले हम ओवरऑल कर लेते हैं, और फिर जब हम पर्टिकुलर क्रॉप्स करेंगे तो उनके भी फैक्टर्स को करते चले जाएंगे कि इनके लिए क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये यहां पे है। ऑल दिस थिंग्स दैट वी हैव टू डू, राइट। तो फैक्टर में सबसे पहले हम नेचुरल फैक्टर होता है। नेचुरल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस पैटर्न्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स। जैसे कि इसमें फिजियोग्राफी होता है, क्लाइमेट होता है, सॉइल होता है, विंड होता है, हाइड्रोलॉजी होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है किसी भी क्रॉप के पैटर्न को देखने के लिए। अब फिजियोग्राफी को ले लेते हैं। अब राइस कल्टीवेशन जनरली प्लेन फिजियोग्राफी पे होता है, स्लोप्स पे राइस कल्टीवेशन मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि राइस के कल्टीवेशन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इनफैक्ट वाटर लॉगिंग कंडीशंस चाहिए, वहां पे वाटर ठहरना चाहिए। तो वो तो जनरली आपको प्लेन एरियाज में मिलेगा। स्लोप्स पे अगर राइस कल्टीवेट करोगे तो आपको स्पेशली अलग से बंड बनाना पड़ेगा सो दैट कि वाटर वहां पे रुक सके, अदरवाइज सारे वाटर ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो इसलिए फिजियोग्राफी डिसाइड्स कि व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप। अब फिजियोग्राफी को हम और देख लेते हैं, टी के सेंस में देख लो, टी कल्टीवेशन के लिए देख लो आप। टी कल्टीवेशन के लिए भी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, राइस के लिए भी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए। बट दोनों में फर्क क्या है कि राइस के लिए वाटर लॉगिंग कंडीशंस चाहिए, टी के लिए वाटर लॉगिंग कंडीशंस नहीं चाहिए। इनफैक्ट वाटर लॉगिंग कंडीशन इज डेट्रीमेंटल टू द कल्टीवेशन ऑफ टी। तो इसीलिए फिजियोग्राफी डिसाइड कर देती है कि प्लेन एरियाज में राइस होगा, स्लोपी एरियाज में टी होगा। तो ये फिजियोग्राफी पे बेसिस पे हो जाता है। क्लाइमेट, अब हर क्रॉप्स का अपना कुछ डिमांड होता है इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। अब राइस को ले लो तो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए, जूट के लिए 150 सेंटीमीटर के करीब में रेनफॉल चाहिए, मगर व्हीट को कितना चाहिए? 50 से 100 रेनफॉल चाहिए। तो इसीलिए जो वेट क्लाइमेट होता है वहां पे हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाते हैं, राइस, जूट, टी। लेकिन जो ड्राई क्लाइमेट्स है, जो मॉडरेट रेनफॉल वाली क्लाइमेट है, वहां पे हम व्हीट को कल्टीवेट करते हैं, कॉटन को कल्टीवेट करते हैं। तो इस तरीके से आप पैटर्न देखोगे तो व्हीट का पैटर्न जो है वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में मिलेगा, राइस का पैटर्न जो मिलेगा आपको ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री इज हैविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री इज हैविंग लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो इस तरीके से रेनफॉल जो है, टेम्परेचर जो है, ये डिसाइड करता है कि कौन से क्रॉप्स कहां बोए जाएंगे। समझ में आ रही है? क्लाइमेट हो गया। सॉइल इंपॉर्टेंट होता है, कुछ क्रॉप्स के लिए कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉइल जो है फेवरेबल होती है। जैसे कॉटन के लिए ब्लैक रेगर सॉइल जो है बहुत अच्छा होता है। इसीलिए कॉटन देखोगे तो महाराष्ट्र का रीजन, गुजरात का रीजन का जो डेक्कन वाला रीजन है, मालवा वाला रीजन है, वहां आपको ज्यादा कॉटन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां के सॉइल जो है फेवर कर रही है कॉटन कल्टीवेशन को, राइट। तो उसी तरह से आप डीप अलुवियल सॉइल में राइस को कल्टीवेट करते हैं, तो राइस आपको मेजरली आपको मिलेगा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में मिलेगा, कोस्टल रीजन्स में मिलेगा, डेल्टाइक प्लेन्स में मिलेगा। क्यों? कि ऑल दीज रीजन्स हैव डीप अलुवियल सॉइल व्हिच इज द वेरी फेवरेबल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइस कल्टीवेशन। तो सॉइल भी डिसाइड करता है कि कौन सी क्रॉप्स कहां पे बोई जाएगी। विंड हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं। तो ये हमारे नेचुरल फैक्टर्स हो गए। दूसरे तरह का जो फैक्टर होगा जो क्रॉपिंग पैटर्न को बताएगा वो होगा इकोनॉमिक फैक्टर। कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर होंगे? देखो, ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है स्पेशली पेपर 3 में ये टर्म का यूज किया गया है, क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स। तो इसीलिए इस क्रॉपिंग पैटर्न वाले टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, 1 by 1 सारे फैक्टर, सारे क्रॉप्स के बारे में। इसलिए बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट पॉइंट, डायरेक्ट वर्ड, डायरेक्ट टर्म यूज इन आवर सिलेबस। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो किसी क्रॉपिंग पैटर्न को इंडिया में डिसाइड करेंगे, पर्टिकुलर क्रॉप्स कहां बोए जाते हैं, नहीं बोए जाते हैं। देखो, सबसे पहले वैल्यू ऑफ क्रॉप्स डिसाइड करता है। कोई क्रॉप्स जो है उसकी क्या वैल्यू होती है वो उसके पैटर्न को डिसाइड करता है, राइट। उसी तरह से हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड होता है। वैल्यू ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया था कि कोई क्रॉप्स जो है अगर उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं हो रही है या फिर उसकी इनपुट प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, आउटपुट ज्यादा नहीं मिल रही है, तो वो जनरली पुअर रीजन में आपको मिलेंगे। राइस कल्टीवेशन जैसे ले लो, राइस कल्टीवेशन कहीं भी बहुत रिच रीजन में नहीं मिलते हैं, जनरली पुअर स्टेट्स में ज्यादा राइस की कल्टीवेशन आपको मिलेंगी। उसी तरह से जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं जिसके लिए इनपुट भी बहुत हाई होती है, वो जनरली रिच स्टेट्स में मिलेंगे, जहां फ्लोरिस्ट स्टेट्स है वहां ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से होते हैं, जैसे कॉटन का खेती ले लो, शुगर केन की खेती ले लो, ये सारी चीजें। अब इंडस्ट्रियल डिमांड्स भी डिसाइड करती है क्रॉपिंग पैटर्न को। अब एज फॉर एग्जांपल आप देख लो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो महाराष्ट्र में है, शुगर इंडस्ट्रीज।
ये शुगर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में होने की वजह से महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न साइड है, खानदेश वाला रीजन या फिर विदर्भ वाला रीजन, ये वाले रीजन्स जो है वो ड्राई रीजन्स हैं। ये जो है शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है और शुगर के को हाई रेनफॉल चाहिए। फिर भी शुगर कल्टीवेशन महाराष्ट्र में हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड्स, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज काफी सारे हैं। तो इसकी वजह से जो है वो नेचुरली अनफेवरेबल रीजन्स में भी हम शुगर को कल्टीवेट कर रहे हैं, वहां के फार्मर शुगर केन को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डिमांड भी डिसाइड कर देता है क्रॉपिंग पैटर्न को। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, जहां इरिगेशन होगा, फूड प्रोसेसिंग होगा, एनर्जी होगा, तो ये सब भी डिसाइड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर क्रॉपिंग पैटर्न को। तो ये सारी चीजें जो है डिसाइड करती हैं, राइट। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक फैक्टर। उसके अलावा आपको सोशियो कल्चरल फैक्टर भी होता है, जैसे फूड हैबिट हो गया। जैसे फूड हैबिट होगी किसी रीजन के, उसी तरह के क्रॉप्स वहां पे उपजाए जाएंगे। तो फूड हैबिट्स आल्सो डिसाइड द क्रॉपिंग पैटर्न। रिलीजन्स हो गया, रिलीजियस फैक्टर्स भी होता है। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी भी होता है, जहां भी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो वहां वो ऐसे क्रॉप्स उपजाएंगे जो कि इजिली खा सके, ह्यूज अमाउंट में आए और लोग खा लें, जैसे राइस हो गई, राइट। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी भी डिसाइड करती है। जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी जो है जहां पे ज्यादा होती है वहां पे लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स ज्यादा उगाए जाते हैं। क्यों लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां चीप लेबर मिलेंगे, तो इसीलिए चीप लेबर के अवेलेबिलिटी के लिए क्रॉपिंग पैटर्न भी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। फिर हमारा लैंड होल्डिंग्स होता है, माइग्रेशन ऑफ लेबर्स होता है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं भारत में क्रॉपिंग पैटर्न को, राइट। फिर हम आते हैं पॉलिसी फैक्टर्स को। पॉलिसी फैक्टर्स में सबसे पहले हमारा सब्सिडी पॉलिसी है। वो सारे क्रॉप्स जिसपे सब्सिडी ज्यादा है, जिसके से सब्सिडी की वजह से हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे फार्मर्स को, फार्मर्स वही ग्रो करना चाहेंगे। एमएसपी पॉलिसी को ले लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जिन जिन क्रॉप्स पे एमएसपी हाई है, जिनमें फार्मर्स को ज्यादा फायदा है एमएसपी की वजह से, फार्मर्स हमेशा इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं क्रॉप्स को उपजाने के लिए। और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी की वजह से देयर इज अ वेरी डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द क्रॉप्स। वही सारे क्रॉप्स ज्यादा उपजाए जाते हैं जिनके एमएसपी हाई होते हैं, जैसे आपको राइस हो गया, व्हीट हो गया। तो इसलिए ये एमएसपी पॉलिसी भी डिसाइड करती है क्रॉपिंग पैटर्न को। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो प्रमोट करती है कुछ सर्टेन क्रॉप्स को। अर्लियर ये केवल प्रमोट करती थी राइस को, व्हीट को और पल्सेस को। धीरे धीरे और क्रॉप्स भी इसके बास्केट में डाल दिए गए हैं। तो जिन क्रॉप्स को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सपोर्ट करती है, वो क्रॉप्स जाहिर सी बात है फार्मर्स ज्यादा उपजाएंगे, क्योंकि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट इन क्रॉप्स को उपजाने के लिए, जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस क्रॉप्स। फिर लैंड रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। लैंड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस भी बहुत हद तक डिसाइड करती है, इनफैक्ट फैक्टर होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। फिर लास्ट में हम आते हैं यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। ये मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फार्म मशीन्स, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड कर रही हैं, या जो ऑलरेडी क्रॉपिंग पैटर्न स्टैब्लिश्ड है उसमें चेंज कर रही हैं, राइट। आज व्हीट कल्टीवेशन इतना ज्यादा क्यों हो गया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में? बिकॉज ऑफ द HYV सीड ड्यूरिंग द व्हाट एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो उस टाइम में HYV सीड्स जो है की वजह से व्हीट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंडिजन्स में बढ़ गया। फेवरेबल क्लाइमेट्स तो था ही, लेकिन साथ में आपको HYV सीड्स भी मिल गए। तो ये सारे 5 मेजर सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं एग्रीकल्चरल पैटर्न को, क्रॉपिंग पैटर्न को। ये एक्चुअल में डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रॉप्स जो है कहां बोया जाएगा, कहां पे कल्टीवेट किया जाएगा, किस मात्रा में कल्टीवेट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। ऑल दिस फैक्टर्स डिसाइड। तो इसलिए इनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, राइट। चलो, हमने डिटर्मिनेंट्स तो देख लिया। अब हम बात करते हैं आपको कि क्या बेसिस होता है क्रॉपिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए। किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का पैटर्न हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में कम है। एक्चुअली देयर आर 2 बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। 2 बेसिस होता है। एक बेसिस होता है रिलेटिव डिस्पर्सल और एक बेसिस होता है रिलेटिव इल्ड। रिलेटिव इल्ड और रिलेटिव डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है कि पूरे एरिया जो रीजन में है उसका कितने भाग एरिया में कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स को बोया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब कि द अमाउंट ऑफ लैंड बीइंग यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप्स। तो इट इज द परसेंटेज एक्रियज ऑफ एनी क्रॉप ओवर एनी रीजन। तो ये रिलेटिव डिस्पर्सल होता है।
दूसरा होता है रिलेटिव इल्ड, ये होता है इल्ड के फॉर्म में कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी पार्टिकुलर क्रॉप का, और इन कंपैरिजन टू द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट। तो ये होता है रिलेटिव इल्ड और रिलेटिव डिस्पर्सल। ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं होती है, बेसिकली हम यहां ये समझना है कि जो पैटर्न है वो डिसाइड होता है डिस्पर्सल के बेसिस पे और इल्ड के बेसिस पे। समझ में आ रही है बातें? ये ऐसे इसलिए होता है कि इंडिया में कई जगह ऐसे रीजन्स हैं जहां कोई पार्टिकुलर क्रॉप्स बहुत लार्ज स्केल पे कल्टीवेट नहीं की जाती है, लेकिन जब उनका प्रोडक्शन देखोगे तो उनकी प्रोडक्शन बहुत हाई होती है। उसका कारण यह है कि वहां का जो लैंड है वो हाईली फर्टाइल है, वहां के जो फार्मर्स हैं वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं, बिल्कुल अरेंज्ड फार्मिंग करते हैं, तो उसकी वजह से जो वहां का इल्ड होता है वो हाई हो जाता है डिस्पाइट हैविंग लो डिस्पर्सल, राइट। तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा अगर पैटर्न को आप किसी में से, दोनों में से किसी एक को कंसीडर करोगे तो, क्योंकि डिस्पर्सल कम होगा तो लोग समझेंगे कि वो एग्रीकल्चरल पैटर्न नहीं हुआ वहां पे, लेकिन इल्ड तो हाई है। तो इसलिए हम दोनों को फैक्टर इन करते हैं जब हम पैटर्न बताते हैं, और उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा रीजन है इंडिया में। सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ राइस, राइस के लिए हम बात करते हैं, तो हमें यह भी देखना होता है कि किस रीजन्स में लैंड का बड़ा हिस्सा राइस कल्टीवेशन होता है बड़े हिस्से पे, और किस रीजन में जो प्रोडक्शन होती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा राइस की प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए हम इल्ड भी देख लिए और डिस्पर्सल भी देख लिए, और इसकी वजह से हम जो है चार तरह के रीजन्स को देखते हैं। एक हाई इल्ड हाई डिस्पर्सल, वो ये रीजन्स होते हैं जहां इल्ड भी हाई है डिस्पर्सल भी हाई है, यानी कि पूरे एरिया का लार्ज हिस्सा पे हम वहां पे क्रॉपिंग भी कर रहे हैं, और पूरे प्रोडक्शन का एक लार्ज हिस्सा जो है वही क्रॉप है, तो वो हाई इल्ड और हाई डिस्पर्सल हो जाता है। दूसरा होता है हाई इल्ड बट लो डिस्पर्सल, यानी कि इल्ड तो काफी है लेकिन डिस्पर्सल उतना ज्यादा नहीं है, लैंड उतना यूज नहीं हो रहा है। ये ज्यादातर आपको मिलेंगे पंजाब हरियाणा वाले रीजन्स में। पंजाब हरियाणा वाले रीजन्स ऐसे हैं, वो हाईली फर्टाइल और हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चर है, जिसकी वजह से कोई फसल जो है कम एरिया में उपजाई जाती है, लेकिन फिर भी बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में वहां इल्ड हाई होती है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं हाई इल्ड लो डिस्पर्सल रीजन। उसी तरह से आप उल्टा कर दोगे तो लो इल्ड हाई डिस्पर्सल भी हो सकता है। बहुत ऐसे जगह हैं जो कि बोए तो बहुत लार्ज एरिया में बोए जाते हैं, लेकिन जो फसल का जो प्रोड्यूस होता है, जो इल्ड होता है, वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां की फर्टिलिटी नहीं है उतनी अच्छी, क्लाइमेट उतना फेवरेबल नहीं है, या लोग फार्मर्स पुअर हैं तो वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वहां पे ज्यादा चल रही हैं। तो इस तरह से हम वेरियस जो है हम देखते हैं कि कौन से रीजन्स में डिस्पर्सल कैसा है और इल्ड कैसा है, और उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है कैसा है। तो ये हमारा दो बेसिस होता है क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करने का। अब चलो वन बाय वन हम पहले मेजर क्रॉप्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में, और उसके बाद इन सब के बारे में देखेंगे। देखो मेजर क्रॉप्स में अगर हम बात करें फूड क्रॉप्स की, तो आपको राइस और व्हीट सबसे ज्यादा इंडिया में उगाए जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करें तो शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये तीनों की काफी सिग्निफिकेंस है। राइस व्हीट का फूड के टर्म्स में काफी सिग्निफिकेंस है, इनका जो है कैश क्रॉप्स के टर्म्स में काफी सिग्निफिकेंस है, और टी और कॉफी को एज ए बीवरेज जो है काफी सिग्निफिकेंस है। तो मेजरली अगर देखें तो ये 7 क्रॉप्स जो है इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स आप बोल सकते हैं, राइट। अब वन बाय वन, वैसे तो काफी सारे क्रॉप्स हैं, 15 20 25, देयर इज नो लिमिट टू दैट, but what we have to discuss here is only about the most important crops, because it is not feasible for us to discuss all the crops one by one, right। तो बेसिकली ये जो है मेन क्रॉप्स हैं जिनको हमने यहाँ पे कवर किया है, राइट। तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइस की कैसी कल्टीवेशन है, क्या पैटर्न है, कैसा है, ये डिस्कस करेंगे। फिर व्हीट को देखेंगे, शुगर केन को देखेंगे, कॉटन को देखेंगे, जूट को, टी को, कॉफी को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए हम राइस से। देखो राइस जो है इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जो 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी जितना भी एरिया हम जो क्रॉपिंग के लिए यूज करते हैं अपने कंट्री में, इसकी 1/4 भाग पे राइस कल्टीवेट होती है, और ये लगभग आधा पॉपुलेशन को इंडिया के ये फीड करता है, राइट। मतलब जो फूड पैटर्न है राइस का, जो फूड हैबिट है लोगों का राइस खाने का, वो बहुत लार्ज एरिया में है, पर्टिकुलरली डेंस एरिया में है, आप कह सकते हैं। बिहार में देख लो, बंगाल में देख लो, दीज आर व्हाट हाईली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, दे ऑल हैव राइस एज द मेन फूड, राइट। तो इसलिए हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को राइस जो है कल्टीवेशन फीड कर रहा है। अब हमें देखने हैं इस राइस में कि क्या कंडीशंस होते हैं इसके ग्रोथ के, कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायरमेंट होते हैं राइस कल्टीवेशन के लिए, और फिर हम देखेंगे कि इनका पैटर्न कैसा है, डिस्पर्सल कैसा है, इल्ड कैसा है।
तो सबसे पहले कंडीशंस ऑफ ग्रोथ देखते हैं। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ में आप जब भी बात करेंगे तो आप तीन चार चीजों का बात करेंगे कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, रेनफॉल कैसा होना चाहिए, टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए, वहां लेबर की जरूरत है कि क्या है, ये सारी चीजें आपको देखना होता है। तो ये चार पांच चीजें ना हम हर क्रॉप्स के लिए बात करेंगे लगभग, ठीक है। तो वन बाय वन, अब जैसे टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो राइस जो है एक हॉट क्लाइमेट का क्रॉप्स है, तो इसलिए इसकी टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग अराउंड हमें चाहिए होती है। और राइस आप देखोगे तो कौन सा क्रॉप्स है, तो ये खारीफ क्रॉप है। खारीफ क्रॉप है यानी ड्यूरिंग समर में हम इसको कल्टीवेट करते हैं, राइट। जब समर शुरुआत होगा तो राइस की सोइंग स्टार्ट होगी, और जब सब समर एंड होने वाला होगा तब उस समय हम हार्वेस्टिंग करते हैं राइस को। तो वी नीड ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द राइस, राइट। फिर रेनफॉल की बात करें तो ये हाई रेनफॉल वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, वेट रीजन का क्रॉप होता है, तो रेनफॉल शुड बी 150 सेंटीमीटर और इवन मोर। अगर 150 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है तो आपको इरिगेशन के थ्रू आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा इसके रिक्वायरमेंट्स को, राइट। फिर इसके लिए जनरली फ्लैट टोपोग्राफी चाहिए विथ डीप फर्टाइल सॉइल और फ्लैट टोपोग्राफी। फ्लैट टोपोग्राफी क्यों चाहिए? क्योंकि फ्लैट टोपोग्राफी पे वाटर लॉगिंग कंडीशंस हो जाता है, यहां ड्रेनेज पुअर होती है, और राइस के लिए वाटर लॉगिंग कंडीशन ही चाहिए। और दूसरी बात है कि जहां भी फ्लैट टोपोग्राफी होती है वहां की सॉइल डीप होती है। अगर स्लोप्स पे आप बात करते हैं तो बहुत सॉइल डीप नहीं बनेगी, काफी थिन लेयर ऑफ सॉइल बनता है। बट दिस राइस रिक्वायर डीप फर्टाइल सॉइल, दिस राइस रिक्वायर्स wet conditions, water logging conditions, and all such conditions would be provided by what? फ्लैट टोपोग्राफी। तो इसलिए फ्लैट टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे माउंटेन्स पे भी राइस होती है, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा मतलब मैनेज करना पड़ता है। अब बंड्स बना के पानी को रोकेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से होती है, और आपकी जो इल्ड होगी वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, राइट। फिर रिवर अलुवियल प्लेन्स जो होते हैं, या कोस्टल प्लेन्स होते हैं, या डेल्टाज होते हैं, वो सबसे ज्यादा सूटेड होते हैं राइस कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इन सब रीजन्स में, रिवर अलुवियल्स में, डेल्टाज में या कोस्टल प्लेन्स में आप सॉइल प्रोफाइल देखेंगे तो अच्छा रहेगा, और सॉइल जो है काफी फर्टाइल भी रहता है, सॉइल में काफी मॉइस्चर भी होता है। तो इसलिए ये सारे रीजन्स जो है राइस कल्टीवेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीप लेबर। राइस इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स। यहां मैकेनाइजेशन जो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राइस को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नर्सरी बनाते हैं, फिर वहां से एक एक प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं जाके खेत में, तो इस तरीके से लेबर का काम वहां बहुत ज्यादा होता है। तो चीप लेबर का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखोगे तो आप डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में राइस कल्टीवेशन ज्यादा होता है, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, तो क्योंकि वहां लेबर इजिली मिल जाते हैं। बट धीरे धीरे आजकल जो अर्बनाइजेशन की वजह से माइग्रेशन हो रहा है लेबर्स का फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज, इसकी वजह से ये जो राइस कल्टीवेशन है इसको एक चैलेंज क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि अब लेबर नहीं है राइस फील्ड्स में काम करने के लिए। तो धीरे धीरे एक राइस का पैटर्न जो है वो स्लोली इट गोज ऑन चेंजिंग, और धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर रहे हैं राइस कल्टीवेशन से, क्योंकि ये जो है काफी एक चैलेंजिंग काम हो गया है इन द सिनारियो ऑफ द डेफिसिट ऑफ लेबर। अब इंडिया में जो मेथड्स राइस कल्टीवेशन के होते हैं वो जनरली तीन चार मेथड्स होते हैं राइस कल्टीवेशन के। कई सारे मेथड्स से हम राइस को कल्टीवेट करते हैं। जो काफी पुअर रीजन है, काफी मतलब काफी पिछड़ा हुआ रीजन है, वहां पे ब्रॉडकास्टिंग मेथड का यूज किया जाता है राइस के लिए। ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो होता है बिल्कुल अनप्रोडक्टिव मेथड होता है राइस कल्टीवेशन का, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि बीज को ऐसे हाथ से फेंक देते हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी preparing a nursery and then transplanting the seedlings to the farm, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लैंड पे सीधा जो है हम फेंक देते हैं ऐसे सीड्स को, और इंतजार करते हैं कि वो धीरे धीरे खुद से उपज के राइस मिल जाएगा मुझे। तो दिस काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इसमें हम लैंड को इवन प्लो भी नहीं करते हैं, जोतते भी नहीं है खेत को हम। तो ये जो है बहुत लो इनपुट और लो इल्ड मेथड होता है। इसमें आपका इनपुट का भी खर्च है काफी लो, और आपकी इल्ड भी उसी अकॉर्डिंग बहुत लो आएगी। प्रैक्टिस्ड इन ड्राई एरियाज, जनरली ये ड्राई एरियाज में प्रैक्टिस्ड होते हैं। ड्राई एरियाज में इसलिए प्रैक्टिस्ड होते हैं क्योंकि वहां वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी है नहीं, तो पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम द राइस कल्टीवेशन, सो दे आर गोइंग फॉर द वेरी लो इनपुट मेथड्स। फिर दूसरा होता है एक ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड में क्या होता है कि लैंड को पहले प्लो करते हैं और फिर उसमें सीड्स को डालते हैं, राइट।
तो ये जनरली आपको पेनिनसुलर इंडियाज में ज्यादा मिलेंगे कि यहां लैंड तो प्लो करेंगे, हम उसको खेत को जोतेंगे, लेकिन उसके बाद हम सीड्स ऐसे ही डाल देंगे। तो इससे थोड़ा सा ये जो है मोर प्रोडक्टिव है, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव, राइट। तो पेनिनसुलर रीजन्स में ज्यादा हम इस तरह के मेथड्स को यूज करते हैं। फिर तीसरा मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन मेथड जो है मेनली बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है वहां ज्यादातर यूज होता है। इस ट्रांसप्लांटेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले एक नर्सरी बनाते हैं, उस नर्सरी में सीड्स डाल के हम एक सीडलिंग्स प्रिपेयर करते हैं, और उन सीडलिंग्स को हम फिर जाके फार्म्स में ट्रांसप्लांट करके और उगाते हैं। तो ये मोस्टली जगह पे ये होता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। और एक चौथा होता है जापानीज मेथड। जापानीज मेथड जिसको हम राइस जापानीज मेथड, जिसको हम RIS भी बोलते हैं, राइट। तो ये होता है, इसमें क्या होता है कि सीडलिंग्स को हम एक रोज के फॉर्म में ये करते हैं। पहले एक रोज बनाते हैं, ठीक है, और इस रोज में हम सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, लाइक। तो इससे इसलिए करते हैं ताकि हमारे लिए वीडिंग भी आसानी रहे और हमारे लिए फर्टिलाइजेशन भी आसानी रहे। यानी कि फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना हो, वीडिसाइड्स अप्लाई करना हो, तो आप एक प्रॉपर चैनल में अगर करते हैं तो आप इजिली ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं, एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस मेथड विल बी वेरी हाई। तो इन चारों में सबसे ज्यादा हाई जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इस मेथड को होती है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, SRI। तो ये मेथड हो गया हमारा जापानीज मेथड। ये मोस्टली जापान से स्टार्ट हुआ था, उसको हमने इसको ये किया है। तो दिस इज जापानीज मेथड, जहां सीडलिंग्स को एक रोज बना के और वहां पे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। अब हम बात करते हैं सीजन ऑफ राइस कल्टीवेशन। कौन सा राइस कल्टीवेशन का सीजन है? मेनली जो ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में बात करोगे आप, तो राइस जो है सालों भर उगाए जाते हैं। कहां? ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में, ईस्ट साइड में और साउथ में, राइट। और नॉर्दर्न और हिली एरियाज में आप बात करोगे तो ये ग्रो केवल समर में होता है। अब ईस्टर्न इंडिया में क्या होता है कि मेन जो खाने का आपका आइटम होता है, जो क्रॉप्स होता है, फूड क्रॉप्स जो मेजर होता है वो राइस ही होता है, राइट। और वहां का जो कंडीशंस है वो हमेशा राइस को ही प्रोमोट करता है सबसे ज्यादा। तो इसलिए हम वहां पे ज्यादातर राइस सालों भर उगाते हैं, राइट। मोनोक्रॉपिंग काइंड ऑफ सिचुएशन वहां पे है। लेकिन आप अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां भी सालों भर होता है, इसलिए कि वहां जो है गर्मी रहती है सालों भर, तो इसलिए इजिली उनके लिए रहता है राइस को ग्रो करना। ठंडी वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही माइल्ड विंटर होता है, इट इज जस्ट लाइक माइल्ड समर। तो ये हो जाता है। अब नॉर्दर्न एंड हिली एरियाज में जो है ठंडी के दिन में आप राइस को नहीं उगा सकते हो, क्योंकि वहां पे काफी कोल्ड हो जाती है ठंडी के टाइम में, एंड राइस कैनॉट बी कल्टिवेटेड बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। उससे नीचे आप राइस को कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इट इज ग्रोन ओनली इन समर इन नॉर्दर्न एंड हिली एरियाज। लेकिन ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में थ्रू आउट द ईयर इसको हम कल्टीवेट करते हैं। और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन नहीं होता है इसका। वो इसलिए नहीं होता है वेस्टर्न इंडिया में क्योंकि वहां पे रेनफॉल नहीं है उतना, बहुत ज्यादा आपको इरिगेशन सपोर्ट देना पड़ेगा अगर राइस कल्टीवेट करते हैं वेस्टर्न इंडिया में, तो राइट। अब हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो पैटर्न्स में अगर हम हाई इल्ड और हाई डिस्पर्सल की बात करें, जहां इल्ड भी हाई है और डिस्पर्सल भी हाई है, मतलब लोग खेती भी सबसे ज्यादा राइस की ही कर रहे हैं और जो उपज हो रहा है पूरा उसमें भी राइस का ही शेयर सबसे ज्यादा है। तो हम बात करेंगे तो ऐसे में वेस्ट बंगाल हमें मिलेगा, बिहार मिलेगा, ईस्टर्न यूपी मिलेगा, गोरखपुर वाला जो रीजन है, असम मिलेगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा मिलेगा, तंजौर बेसिन मिलेगा। तो ये सारी जो रीजन्स हैं, यहां इल्ड भी आपकी हाई मिलेगी, डिस्पर्सल भी हाई मिलेगा, क्योंकि यहां पे नेचुरल कंडीशंस बहुत फेवरेबल है। तो नेचुरल कंडीशंस फेवरेबल होने की वजह से यहां पे डीप फर्टाइल अलुवियल सॉइल है, हाई रेनफॉल है, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द राइस, नेचुरल फैक्टर्स आर अवेलेबल हियर। इसलिए यहां पे इल्ड और डिस्पर्सल दोनों होता है। दूसरा बात करें तो हम हाई इल्ड एंड लो डिस्पर्सल। यहां इल्ड तो हाई है लेकिन डिस्पर्सल बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा खेती का बड़ा हिस्सा जो है हम यूज नहीं कर रहे हैं राइस कल्टीवेशन के लिए, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। ये आपको कहां मिलेंगे? तो डेवलप्ड रीजन्स में मिलेंगे, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा राजस्थान का। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन बेल्ट है ना, वहां अक्सर आप देखेंगे कि डिस्पर्सल बहुत सारे क्रॉप्स का कम है लेकिन इल्ड हाई है। क्यों? क्योंकि वहां के फार्मर्स अमीर हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो रही है, इनपुट वहां पे लोग काफी यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, कंजम्पशन होती है, तो इसलिए इल्ड बढ़ जाती है भले ही डिस्पर्सल कम हो।
और तीसरा एक हो सकता है कि इल्ड कम है मगर हाई डिस्पर्सल है, मतलब लोग तो खूब खेती कर रहे हैं राइस की लेकिन उपज उतनी नहीं है राइस की, तो वो जनरली आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में और छत्तीसगढ़ बेसिन में। यहां ज्यादातर इसलिए मिलता है क्योंकि यहां पे पुअर फार्मर्स आपको ज्यादातर मिलेंगे, पुअर फार्मर्स मिलेंगे, फेवरेबल कंडीशंस उतना ज्यादा नहीं है, फार्मिंग के लिए टेक्निक्स जो यूज करते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए फार्मिंग वो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं मगर प्रोड्यूस जो है उस अकॉर्डिंग नहीं है इनके पास। तो दिस आर द पैटर्न फॉर द राइस कल्टीवेशन। तो ये स्टेट्स याद रखना, वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी, असम, ये सब, इन सब रीजन्स में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन भी हो रहा है। ये सब देखोगे आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, तो आपका कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन ठीक ठाक स्केल पे हो रहा है उस कंपैरिजन में। और इधर छत्तीसगढ़ बेसिन और उधर चले जाओगे तो यहां कल्टीवेशन हो रहा है लार्ज स्केल पे मगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है लार्ज स्केल पे, राइट। तो ये आप पैटर्न्स ऑफ राइस कल्टीवेशन आप समझ गए। तो दिस वाज राइस, चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में किया। अब आप इसको पिक्चर में देख सकते हो रीजन्स को, राइट। ये सब जो होता है परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, ये जो ब्लैक वाला रीजन है यहाँ पे 75% से ज्यादा रीजन्स जो है क्रॉप्ड एरिया को हम राइस कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। ये कौन कौन सा रीजन है, तो आपका उड़ीसा वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल का रीजन है, इधर नीचे जो है नागालैंड, मणिपुर वाला, मिजोरम वाला रीजन है। तो ये सब जो है ओवर 75% जो है परसेंटेज को हम राइस के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा जो है उसके आजू बाजू का जो रीजन है, ठीक है, तो उसको लिए 46 to 75% हो गया। और इस तरह से हमारा सारा कुछ होता है। हम लोग जो है मिनिमम क्रॉपिंग करते हैं कहाँ पे, तो ये वाले पंजाब हरियाणा में हम बहुत ज्यादा लैंड का यूज नहीं करते हैं क्रॉपिंग के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो फसल होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और उसी तरह से ये जो राजस्थान वाला रीजन है वहां पे नेग्लिजिबल है, बिल्कुल वहां पे बहुत ज्यादा राइस हम कल्टीवेट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ड्राई रीजन है, ठीक है। और वो भी आप इधर भी देख लो, आप विदर्भ वाला रीजन है, खानदेश वाला रीजन है, ये सब रीजन में भी बहुत ज्यादा बारिश होती नहीं है तो हम राइस कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ राइस इन आवर कंट्री। क्लियर है। अब हम बात करते हैं वीट कल्टीवेशन की। देखो वीट जो है सेकंड मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन आवर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एरिया। वीट की जो कंडीशंस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिल्कुल उल्टा होती है राइस की। ये एक राबी क्रॉप है, राइस क्या था, खारिफ था, ठीक है। तो यहां जो है 10 से 15 डिग्री चाहिए इसको टेम्परेचर को, राइट। और ये 10 से 15 डिग्री चाहिए या 21 to 26 डिग्री इन समर, ठीक है। यानी कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं बोना, सोइंग का जो पीरियड होता है उस समय टेम्परेचर कम चाहिए और जब हमें हार्वेस्ट करना होता है उस समय थोड़ी हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है फॉर द प्रॉपर राइपनिंग ऑफ द प्लांट। तो इसके लिए हम 21 to 26 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, एंड ड्यूरिंग सोइंग इट रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। ये इसका टेम्परेचर का डिमांड होता है। फिर इसका रेनफॉल को देखोगे तो इसके लिए बिलो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, लेकिन 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो रेनफॉल शुड बी इन बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। वाटर लॉगिंग कंडीशंस नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन इज नॉट गुड फॉर व्हीट। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड यानी कि नो वाटर लॉगिंग, पानी जो है ठहरना नहीं चाहिए एक जगह पे, ड्रेन आउट हो जाना चाहिए सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करके। तो ये जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये जनरली मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा व्हीट में आप कर सकते हैं और इसी कारण यहाँ पे चिप लेबर वाला आपका कंसेप्ट नहीं है कि चिप लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मेजर जो है 3 कंडीशंस होती है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। और यही कारण है, चूंकि ये 50 to 100 सेंटीमीटर ही रेनफॉल चाहिए, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे यहां होता है दैट इज वेरी गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल भी नहीं करता है, विंटर टाइम में वो रेनफॉल होता है। तो विंटर टाइम माइल्ड रेनफॉल इज वेरी गुड फॉर द व्हीट कल्टीवेशन इन आवर कंट्री, एंड दिस इज द रीजन दैट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी रीजन्स हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइट। सीजन्स ऑफ व्हीट कल्टीवेशन, ये राबी क्रॉप है तो पता ही है कि ये बिगिनिंग में इसको विंटर सीजन में सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ समर में। तो बिगिनिंग ऑफ विंटर इज द सोइंग पीरियड, सोइंग ड्यूरेशन फॉर द ये व्हीट कल्टीवेशन, एंड फॉर द हार्वेस्टिंग इट रिक्वायर्स द बिगिनिंग ऑफ समर, राइट, ऑनसेट ऑफ समर। तो ये जो है सीजन्स होते हैं व्हीट के लिए। हाँ, व्हीट के पैटर्न की हम बात करें तो हाई इल्ड और हाई डिस्पर्सल, जहां इल्ड भी हाई है डिस्पर्सल भी हाई है, मतलब लार्ज एरिया में हम फसल भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है व्हीट के लिए, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो है व्हीट बेल्ट ऑफ आवर कंट्री है, राइट।
यहाँ आपको सबसे ज्यादा जो लैंड का हिस्सा है वो व्हीट कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, और प्रोडक्शन के बारे में तो आपको कहना ही नहीं है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तो कुछ भी, अब जो कम एरिया में कर रहा है उसको जब इतना प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये तो लार्ज एरिया में कर रहा है, तो ऑफकोर्स दे विल हैव वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। अब दूसरा हम कंडीशन देख सकते हैं जहां यील्ड हाई है लेकिन डिस्पर्सल कम है। यील्ड हाई और डिस्पर्सल लो, ये आपको बंगाल दुआर्स मिलेगा, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न गुजरात प्लेन्स, ये सारी रीजन्स में यील्ड तो ज्यादा है लेकिन डिस्पर्सल बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहां यील्ड ज्यादा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहां पे पंजाब हरियाणा से भी ज्यादा यील्ड है, अपने डिस्पर्सल के कंपैरिजन में ज्यादा यील्ड है, ये कहने का मतलब होता है। तो इसके लिए बंगाल दुआर, शाहाबाद, नॉर्दर्न गुजरात प्लेन्स, इन सब रीजन्स में आपको मिलेंगे क्योंकि यहां पे बहुत फर्टिलिटी हाई होगी। हाई डिस्पर्सल बट लो यील्ड, डिस्पर्सल बहुत ज्यादा है, लोगों को व्हीट कल्टीवेशन करने की बहुत लगी है कि हम व्हीट कल्टीवेशन करेंगे, लेकिन यील्ड नहीं है। तो इसमें मध्य प्रदेश मिल जाएगा, मालवा रीजन मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा। बिहार में लोग काफी खेती करते हैं व्हीट की, लेकिन व्हीट का प्रोडक्शन उतना ज्यादा बिहार में नहीं है। तो ये सारी चीजें पैटर्न्स ऑफ व्हीट कल्टीवेशन में आप व्हीट के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको आप पिक्चर में देख सकते हैं ये वाली रीजन्स, ये जो भी आप देख रहे हैं ये मोस्टली जो है आपको व्हीट कल्टीवेशन वाला एरिया है। परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, आपको पंजाब में जो है 30% एरिया जो है वो व्हीट के लिए यूज किया जाता है। फिर आप हरियाणा में देख लो, आप इसमें देख लो, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये सब रीजन्स जो है इसमें जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया का काफी कम यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका है, राइट। शुगर केन की बात करते हैं अब। शुगर केन, क्या क्या कंडीशंस हैं शुगर केन के लिए, शुगर केन के ग्रोथ के लिए। पहली बात कि शुगर केन इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हीट एंड राइस। वाई? बिकॉज कि शुगर केन इज हैविंग ए वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, वेरी जो क्रॉप साइकिल है वो बहुत बड़ी है इसकी, राइट। लॉन्ग ड्यूरेशन होने की वजह से 15 से 18 महीने लग जाते हैं क्रॉप साइकिल में शुगर केन के। मतलब आपके सोइंग से हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो 15 to 18 मंथ्स लग जाते हैं, लगभग 1.5 साल लोग के चले जाते हैं। इसमें आप 4 बार खेती कर लोगे व्हीट और कल्टीवेशन का, 5 बार कर लोगे, राइट। ये जो होता है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में होना चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस यानी जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, हॉट कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल जो है 75 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, मतलब यहां पे ह्यूमिड कंडीशंस होना चाहिए। रेनफॉल शुड बी मोर देन 75 एंड अबाउट 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसकी जो सॉइल होती है वो कोई भी सॉइल आप जो रिटेन कर सके मॉइस्चर को, राइट, तो वो सारे सॉइल्स पे ये हो जाती है। इसकी सॉइल कंडीशंस बहुत रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, बहुत ओपन सॉइल कंडीशंस होती है। द ओनली थिंग दैट देयर शुड बी डीप लोमिंग सॉइल, जो कि ज्यादा फेवरेबल होती है इसके ग्रोथ के लिए, डीप लोमी सॉइल। लोमी सॉइल, आपने सॉइल में पढ़ा है कि लोमी सॉइल क्या होती है, राइट, जिसमें टेक्सचर जो होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का वो इक्वल होता है, तो इसको लोमी सॉइल बोलते हैं। तो डीप लोमी सॉइल अगर इसको मिल जाए तो फसल बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज सॉइल का बहुत ज्यादा कंडीशंस, इसका कोई रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस नहीं है। उसके बाद चीप लेबर, इसके लिए भी आपको चीप लेबर चाहिए। वाई? बिकॉज क्योंकि शुगर केन कल्टीवेशन इज अ लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तो इसलिए चीप लेबर का होना बहुत जरूरी होता है शुगर केन के इसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, राइट। अब इसके हम पैटर्न की बात करें तो मेजरली आपको 3 रीजन्स मिलेंगे, आपको 3 रीजन्स मिलेंगे शुगर के लिए, जिसमें कि 2 मेजर रीजन्स होगा, एक सतलज गंगा प्लेन और एक ब्लैक सॉइल बेल्ट। ये 2 मेजर रीजन्स हैं, और एक माइनर रीजन्स होता है कोस्टल आंध्रा एंड कृष्णा वैली। तो यहां आप हम बहुत ज्यादा डिस्पर्सल और यील्ड के बेसिस पे यहां पैटर्न को सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रीजन्स नहीं है यहाँ पे, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स होता है। जैसे गुजरात सतलज गंगा प्लेन है, सतलज गंगा प्लेन में पंजाब से लेकर बिहार तक लोग जो है टोटल एरिया का 51% जो है यहां पे ये करते हैं, शुगर केन को कल्टीवेट करते हैं, और 60% ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया इनका नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी शुगर केन कल्टीवेशन हो रहे हैं उसका 51% जो है, जो कल्टीवेशन जो है ये सतलज गंगा प्लेन में होता है, और टोटल जितना प्रोडक्शन होता है शुगर केन का उसका 60% जो है सतलज गंगा प्लेन में होता है। तो ये जो है पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो है हमारा ब्लैक सॉइल बेल्ट है। ब्लैक सॉइल बेल्ट मतलब कि महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न रीजन है, महाराष्ट्र का ईस्टर्न रीजन है, तमिलनाडु का जो नॉर्दर्न रीजन है, प्लस गुजरात का जो सदर्न रीजन है, तो ये सब आ जाएंगे। महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड में, यहां पे आप देखोगे खानदेश वाला रीजन है, विदर्भ वाला रीजन है, वहां भी बहुत ज्यादा शुगर केन होता है। लेकिन वहां शुगर केन जो है वहां
मतलब अगेंस्ट द फेवरेबल कंडीशंस, मतलब वहां का जो कंडीशंस होता है वो शुगर केन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो ड्राई रीजन्स हैं और शुगर केन कैसा है, वो ह्यूमिड कंडीशंस का क्रॉप है। लेकिन वहां जो है इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से ये जो पैटर्न वहां बन चुका है। वहां सो मेनी शुगर इंडस्ट्रीज हैं और सारे शुगर इंडस्ट्रीज को शुगर केन चाहिए, सप्लाई ऑफ इनपुट चाहिए, उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए ये ब्लैक सॉइल बेल्ट में शुगर केन की कल्टीवेशन शुरू हो गई और वहां के फार्मर्स जो है उनको ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिखने लगा शुगर केन फार्मिंग। और इसी की वजह से ये फॉल्टी एग्रीकल्चरल पैटर्न की वजह से मोस्टली वो लॉस में जाते हैं और फार्म डिस्ट्रेस एंड फार्मर सुसाइड जो है वहां ज्यादा प्रिवेलेंट है। क्योंकि शुगर केन एक तो इतना बड़ा क्रॉप साइकिल है 15 से 18 महीने का, ये लोग जो है जो गरीब फार्मर्स होते हैं वो उधार लेके, लोन लेके और शुगर केन फार्मिंग करते हैं, ये सोच के कि फार्मिंग अच्छा होगा मेरा तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ इंडस्ट्रियल यूज में जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो खरीदेंगे हमसे। और लास्टली अगर उनका फसल किसी कारण से बर्बाद हुआ तो वो ह्यूज कर्जे में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, फॉल्टी एग्रीकल्चरल पैटर्न इन दिस रीजन्स। तो ये रीजन्स जो है हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन्स है। तीसरा जो रीजन है हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश और कृष्णा वैली है। इस रीजन्स में थोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, बट थोड़े बहुत यहां भी होता है कल्टीवेशन। अब हम बात करते हैं शुगर कल्टीवेशन को। आप देख सकते हो कितना रेस्ट्रिक्टेड है। एक ये आपका सतलज गंगा प्लेन है। पंजाब हरियाणा में देखोगे तो आप हर कल्टीवेशन को थोड़ा थोड़ा कल्टीवेट करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास इतने फर्टाइल सॉइल हैं, इतनी इनके पास इनपुट अफोर्ड करते हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग है, कि हर चीज के ना जो भी कल्टीवेशंस हैं ये करते हैं और इनकी इल्ड भी हाई होती है, राइट। तो हाँ, यहां से लेके आपको बिहार तक आपका कल्टीवेशन आपको शुगर केन का आपको दिख जाएगा। फिर दूसरा रीजन ये वाला आपका ब्लैक सॉइल रीजन हो जाएगा, और तीसरा जो है एक माइनर रीजन ये वाला आपका हो जाएगा। तो ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन है जहां शुगर केन की खेती मैक्सिमम की जाती है। अब हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन एक फाइबर क्रॉप्स होता है, राइट। कॉटन जो होता है वो जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स होता है, नॉट फॉर जस्ट फॉर इंडिया, फॉर द होल वर्ल्ड। इनफैक्ट जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो कॉटन बेस्ड था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस्ड था, राइट। तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं कॉटन के लिए? सबसे पहले कि ये भी जो है हॉट एंड मॉडरेट रेनफॉल, नॉट वेरी ह्यूमिड, सेमी एरिड कह सकते हो, हॉट एंड सेमी एरिड कंडीशंस का क्रॉप है, राइट। अबाउट 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए चाहिए कॉटन के लिए। रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो ये बहुत ज्यादा ह्यूमिड नहीं है, सब ह्यूमिड रीजन का है, राइट। इफ नॉट एरिड एंड सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड यू कैन कॉल। मॉडरेट रेनफॉल इसके लिए चाहिए। इसके लिए सॉइल चाहिए, वो डीप ब्लैक सॉइल जो होता है वो बेस्ट होता है इसके लिए। लेकिन अलुवियल सॉइल में भी ये होता है, पर्टिकुलरली द सतलज गंगा प्लेन, मोस्टली सतलज प्लेन, पंजाब हरियाणा वाला जो प्लेन है। तो ये जो सॉइल होता है वो डीप ब्लैक सॉइल, जो रेगर सॉइल होता है वो बेस्ट होता है, जो डेक्कन रीजन में होता है, मालवा प्लेट्यू में होता है, गुजरात में होता है। लेकिन अलुवियल सॉइल में भी ये उगता है, कल्टीवेट किया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट है कि चिप लेबर इसके लिए चाहिए। चिप लेबर बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लेबर इंटेंसिव, यहां बहुत ज्यादा काम होता है। छोटे छोटे जो फार्म्स पे हैं, शॉर्टिंग, इधर से उधर करना, ये सब बहुत लेबर का इसमें काम होता है। तो इसलिए इसे चीप लेबर का होना बहुत जरूरी होता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, राइट। अब हम इसके पैटर्न को देखें तो हमें जो 2 मेजर रीजन्स मिलेंगे, एक रीजन तो आपको मिल जाएगा ब्लैक सॉइल वाला रीजन, जो गुजरात के काठियावाड़ में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। यहां इल्ड और डिस्पर्सल दोनों हाई रहेगा, आपको हाई इल्ड भी मिलेगा, हाई डिस्पर्सल भी मिलेगा। तो ये एक मेजर रीजन हो जाता है नंबर 1। और दूसरा जो हमने बताया आपको, ये गंगा सतलज प्लेन वाला, जिसमें पंजाब, हरियाणा, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यहां इल्ड हाई है लेकिन डिस्पर्सल बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस रीजन का तो खासियत है कि कुछ भी यहां पे बोओगे तो इल्ड हाई होगा, डिस्पर्सल हो ना हो, राइट। क्योंकि यहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहां बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये शुगर केन भी उगाते हैं, कॉटन भी उगाते हैं, राइस भी उगाते हैं, व्हीट भी उगाते हैं, ये जूट वगैरह को छोड़ के, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल इनको चाहिए। अदरवाइज सारे क्रॉप्स जो है ये यहाँ पे ग्रो करते हैं और सबका इल्ड हाई होता है। व्हाई? बिकॉज दे हैव गुड फर्टिलिटी, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे हैव लार्ज होल्डिंग, दे हैव मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ऑल द गुड थिंग्स दे हैव। तो इसलिए जो ये होता है। और ये जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ एक्चुअल में फेवरेबल कंडीशंस है, इसलिए यहाँ भी ये चलती है। तो ये 2 रीजन्स हैं पैटर्न्स ऑफ कॉटन कल्टीवेशन के लिए, आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसमें आप देख सकते हो कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये जो आपका ब्लैक वाला रीजन है ये कॉटन का है। तो एक रीजन आपका ये हो गया
कौन सा रीजन है ये? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये थोड़ा बहुत, और आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये रीजन हो गया। और दूसरा जो मेजर रीजन है आपका, ये डेक्कन वाला रीजन हो गया, ब्लैक सॉइल रीजन हो गया। तो ये दो रीजन में मेजरली जो है कॉटन होते हैं। थोड़ा बहुत आपको तमिलनाडु में भी आपको मिल जाता है, कोयम्बटूर वगैरह के पास। तो ये हो गया आपका मेन कॉटन का रीजन इंडिया में। अब हम जूट की बात करते हैं। जूट जो होता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आए दिनों में इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो धीरे धीरे काफी बढ़ने वाली है जूट की, राइट, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होता है, राइट। तो जूट कल्टीवेशन जो होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? जूट के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए आपको, 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, राइट। हेवी रेनफॉल चाहिए, 120 से 150 सेंटीमीटर आपको रेनफॉल चाहिए, राइस की तरह आपको हेवी रेनफॉल इसको आपको चाहिए। ह्यूमिडिटी इसकी काफी होनी चाहिए, 80 to 90% ह्यूमिडिटी होती है, राइट। ह्यूमिड क्लाइमेट में जो जूट होता है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है। अदरवाइज अगर ड्राई क्लाइमेट होगा तो वो उस स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी उसके अंदर। सॉइल इसके लिए लाइट सैंडी या क्लेई सॉइल सबसे फिट माना जाता है, लाइट सैंडी से क्लेई सॉइल। और इसके लिए भी चीप लेबर चाहिए, क्योंकि जब ये कॉटन रिक्वायर्ड द चीप लेबर, ये भी इसके लिए भी चाहिए, राइट। अब इसके पैटर्न ऑफ कल्टीवेशन आप देखोगे तो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये सारे कंडीशंस जो है बहुत ही कम नैरो रीजन में आपको मिलता है। असम के पास मिलेगा, बिहार के पास मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, क्योंकि वहीं पे हाई रेनफॉल है, वहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर भी वहां ज्यादा है, वहां लेबर भी काफी चिप है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। तो मेन इसका जो आप देखोगे पैटर्न, तो वहीं पे मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। मेनली वो रेस्ट्रिक्टेड होता है वहीं पे, थोड़ा बहुत उड़ीसा में मिल जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा आंध्र प्रदेश में डेवलप हो रहा है। अदरवाइज आप जूट को देख लो तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, यू कैन सी हियर, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये आपका असम हो गया। दिस रीजन्स आर बेसिकली फॉर द जूट, और कहीं नहीं होता है जूट इंडिया में, ठीक है। तो ये है, ये इसलिए भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि जूट जो है धीरे धीरे जो इसकी सिग्निफिकेंस है बीच में बहुत खत्म हो गई, बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स आने लगे उससे जूट की जो यूटिलिटी है बीच में कम हो गई। लेकिन नाउ वी आर रियलाइजिंग द एक्चुअल यूटिलिटी ऑफ दिस जूट, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द जूट कल्टीवेशन इन आवर कंट्री। क्योंकि जूट का अब यूज देखोगे, जूट फाइबर का तो आप काफी ज्यादा यूज आपको आने लगा है। जैसे कि आपको जियो टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, जियो टेक्सटाइल्स आपको पता है ना, जैसे कि रोड पे हम जूट के एक सीट्स बिछाते हैं जिससे कि वाटर पर्कुलेशन हो, या फिर जो हम इम्बैंकमेंट्स बनाते हैं रिवर्स के, तो वहां पे भी एक जूट के सीट को हम वहां पे बिछाते हैं ताकि जो रिवर्स हो वो इरोड ना कर सके इम्बैंकमेंट्स को। तो इन सब रीजन्स में जूट का यूटिलिटी जो है बढ़ती चली जा रही है। जूट के आजकल आपको अपैरल्स भी बन रहे हैं, चप्पल बन रहे हैं जूट के, तो वहां भी जूट की यूटिलिटी आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए जूट कल्टीवेशन को धीरे धीरे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो ये है जूट कल्टीवेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं टी कल्टीवेशन के इंडिया में। टी बहुत इंपॉर्टेंट विवरेज क्रॉप है इंडिया में टी की, राइट। कौन कौन से कंडीशंस है टी के इंडिया में? तो हाई टेम्परेचर होता है, 20 से 30 डिग्री आपको सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए टी के लिए। रेनफॉल इसके लिए बहुत हाई चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। और ये रेनफॉल जो होना चाहिए वो थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी ये रेनफॉल जो है 3-4 महीने का मेहमान ना हो। 100-150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो टी कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे सॉइल को हमेशा मॉइस्चर चाहिए होता है। सॉइल शुड ऑलवेज बी वेरी मॉइस्ट। सॉइल जो होता है वेल ड्रेन्ड डिप लोमी सॉइल होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड यानी कि 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल तो चाहिए, मगर वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं चाहिए। ड्रेन्ड होना चाहिए सॉइल पूरी तरह से, वहां पानी ठहरना नहीं चाहिए। गुड ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, क्योंकि इतने हेवी रेनफॉल में मोस्टली वाटर लॉगिंग कंडीशंस हो जाते हैं। इसीलिए जो ये हमारा जो टी कल्टीवेशन होता है वो प्लेन एरियाज में सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि इस हेवी रेनफॉल में प्लेन एरियाज विल हैव वाटर लॉगिंग कंडीशंस। सो इट इज प्रेफर्ड टू कल्टीवेट टी ऑन द माउंटेन स्लोप्स, क्योंकि यहां रेनफॉल तो हो रहा है तेज, बट देयर इज अ गुड ड्रेनेज एंड सो देयर इज नो एनी वाटर लॉगिंग कंडीशंस ओवर द लैंड। तो इसलिए टी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिल स्लोप्स को इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं टी के लिए, जहां पानी जो है इजिली ड्रेन आउट हो जाए, स्टैग्नेंट ना हो, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर इज इंजूरियस टू द टी कल्टीवेशन, इसके रूट्स के लिए इंजूरियस होता है। इसके लिए चिप एंड स्किल्ड लेबर चाहिए, प्रेफरेबली वुमेन। यहां देखो अनस्किल्ड नहीं बोल रहा है, चिप तो लेबर होना ही चाहिए, स्किल्ड भी होना चाहिए। मतलब कि आपको काफी लेबर की जरूरत है और वो लेबर बेवकूफ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर स्किलिंग होना चाहिए कि कैसे जो है हमको
टी के लीव्स को ये सब तोड़ना है हमें, राइट। तो ये होता है एक तरह से ये बुश होता है टी, राइट। तो ये विमेन को प्रेफरेबली इसलिए किया जाता है कि विमेन जो है काफी यानी मतलब अच्छे से वो लोग अटेंशन के साथ काम करती हैं, राइट। उनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप देखोगे हमेशा टी गार्डन में ना विमेन को मिलेगा आपको टी को तोड़ते हुए, बिकॉज दे नो हाउ टू ब्रेक द, दे बहुत अटेंटिवली जो है वो लोग वो काम करेंगे उस चीज को। तो ये जो है एक विमेन को ज्यादा इंप्लॉय किया जाता है टी गार्डन्स में इसी कारण से, राइट। अब इनका हम पैटर्न्स देखें टी गार्डन का, तो आपको बेसिकली 3 रीजन्स मेनली मिलेंगे, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स जहां टी के कल्टीवेशन होते हैं। एक रीजन आपको मिलेगा ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वहीं से आता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मतलब ब्रह्मपुत्रा वैली, सुरमा वैली ऑफ असम, ये सारी रीजन्स जो है वहां होते हैं। यहां पे इस नॉर्थ ईस्टर्न में आपको जो दुआर वाला रीजन है, कुछ बिहार का, दार्जिलिंग का, जलपाईगुड़ी का, वेस्ट बंगाल का, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो ये रीजन है, ये मोर और लेस 72% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। क्योंकि वहां की जो कंडीशंस देखोगे आप तो कैसा है, हेवी रेनफॉल वाला कंडीशन है, हाई टेम्परेचर वाला कंडीशंस है, माउंटेन स्लोप्स भी हैं। तो ये सारे जो कंडीशंस चाहिए होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बंगाल वगैरह में बहुत ज्यादा है, असम में ज्यादा है, तो उसकी वजह से इनको चीप लेबर भी मिल जाते हैं, विमेन का पर्टिकुलरली स्किल्ड लेबर इनको मिल जाते हैं आसानी से। दूसरा जो रीजन है मेजर, वो साउथ इंडिया का रीजन है। साउथ इंडिया में मेनली नीलगिरी हो गया, कैडमम हो गया, पालनी हिल्स हो गया, अन्नामलाई तमिलनाडु के हैं, केरला और कर्नाटका, जो तमिलनाडु केरला और कर्नाटका के बीच का जो ये माउंटेन रीजन्स हैं, ये सारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के, नीलगिरी, कैडमम, पालनी, अन्नामलाई, इन सब रीजन्स पे भी आपको काफी टी गार्डनिंग मिलेंगे। पूरे प्रोडक्शन का इंडिया के 25% प्रोडक्शन जो है वहीं से होता है। और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी मिलता है, पर्टिकुलरली ये देहरादून, अल्मोड़ा और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, और कांगड़ा और मनाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न का उत्तराखंड और हिमाचल है, इसमें जो है माइनर टी गार्डनिंग वहां भी होती है। तो ये मेन 3 रीजन होता है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया जहां पे कि 72% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन होता है, साउथ इंडिया में जहां 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन होता है, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यहां भी रेनफॉल हाई क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से हेवी रेनफॉल होता है इस रीजन में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हेवी रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून से, तो इसलिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये 2 रीजन्स टी गार्डनिंग के लिए, राइट। तो ये जो होगा पैटर्न ऑफ टी कल्टीवेशन हो गया। पिक्चर से इसे देख सकते हैं आप यहां देखो, टी गार्डनिंग के लिए आपको एक ये रीजन दिख रहा है, असम वेस्ट बंगाल वाला ये रीजन है, ठीक है। दूसरा रीजन आपको यहाँ पे साउथ इंडिया में दिख रहा है, ट्राई जंक्शन ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये जो ट्राई जंक्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का, यहाँ पे मेनली ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ना रीजन, ये टी के लिए है। जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ये कॉफी के लिए है। हम आगे अभी कॉफी की बात करेंगे। तो ये टी जो है 2 मेजर रीजन आपको टी के दिख रहे हैं, और थोड़ा बहुत ये उत्तराखंड और ये हिमाचल में भी होता है, ऊपर में खासकर, राइट। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट आपको हिमाचल में, आपको मनाली डिस्ट्रिक्ट, ये सारे रीजन्स में, राइट। अब हम बात करते हैं कॉफी की, कॉफी कल्टीवेशन की। देखो कॉफी के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। टी के बाद जो दूसरा मेजर ये है, ये कॉफी है। कॉफी एक्चुअली इंडिया का ओरिजिन नहीं है। कॉफी एक्चुअली इथोपिया में एबिसिनियन प्लेट्यू जो है, एबिसिनिया की जो प्लेट्यू है, वहां एक्चुअल में कॉफी सबसे पहले स्टार्ट हुई कल्टीवेशन। ये मतलब कॉफी वहां की नेटिव है, इट इज नॉट नेटिव ऑफ इंडिया। वहां से इथोपिया से अरब गई कॉफी जो है, सीड्स जो है, उसको अरब ले गया गया, अरब में उसकी कल्टीवेशन शुरू हुई। और अरब से एक बाबा बुदन करके इंडियन थे, उन्होंने यहां कर्नाटका लेके आया अरब से उसके सीड्स को, और कर्नाटका में उन्होंने एक हिल स्लोप्स पे, हिल्स के ऊपर, प्लेट्यू के ऊपर उन्होंने इसको ये कर दिया, शो कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे कॉफी की प्लांट्स हो गए, और फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द कॉफी। इसीलिए जो बाबा बुदन हिल्स है कर्नाटक में, वहां पे सबसे ज्यादा कॉफी की कल्टीवेशन होती है। तो ये जो है हमारा इंडिया में ऐसे कॉफी आया। अब हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती है। यहां मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर होती है कॉफी की, मतलब 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक। वेरी हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है कॉफी के लिए, इसलिए इसको माउंटेन्स पे भी आपको होता है। रेनफॉल्स मगर अच्छी चाहिए, यहाँ पे 150 से 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पे जो है ये लोग फ्रॉस्ट को से इनटॉलरेंट होते हैं। दे कांट टॉलरेट फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग सनशाइन, ये सारी चीजें। ये एक तरह से शेड लविंग प्लांट्स हैं, शेड लविंग प्लांट्स, यानी ये ज्यादातर आपको देखोगे तो बड़े पेड़ के छांव में रहने की कोशिश करेंगे। और इसकी वजह से ये जो है नॉर्दर्न या ईस्टर्न स्लोप्स
को ये प्रेफर करते हैं। नॉर्दर्न स्लोप्स को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि सन जो है हमारा साउथ साइड में होता है। और ईस्टर्न स्लोप्स को क्यों करते हैं? कि सन की जो इंटेंसिटी होती है दोपहर और शाम के टाइम में वो वेस्ट साइड में होती है, तो इनके पास डायरेक्ट सनलाइट और हाई इंटेंसिटी के साथ ये न हो, इसलिए ये लोग ऐसे स्लोप्स पे ज्यादा ग्रो करते हैं, नॉर्दर्न साइड ऑफ द और ईस्टर्न साइड ऑफ द। तो इनको शेड लविंग प्लांट्स बोलते हैं। और बाकी जो इनका कंडीशंस है, चीप लेबर वगैरह, सब टी की तरह ही है, सेम एज टी। ठीक है, ये भी वाटर लॉगिंग कंडीशंस को नहीं मतलब टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये सारे इनके जो है कंडीशंस हो गए। अगर इनके पैटर्न्स की बात करोगे तो ये मोस्टली जो है साउथ इंडिया में ही होते हैं, जिसमें से कि 70% जो है ये कर्नाटका में होते हैं। कर्नाटका में बेसिकली जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आप कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा देखोगे। तो 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कुर्ग हो गया आपको, उसके बाद फिर आपको तमिलनाडु साइड में उट्टी हो गया, तो ये सब जो है इसके लिए फेमस होते हैं, राइट। तो ये कर्नाटका 70% ऑफ द प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं केरला। केरला जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, जो 23% होता है, और तमिलनाडु में 6% होते हैं। तो मेनली आपको 70% कर्नाटका, 23% आपको केरला और 6% आपको तमिलनाडु। तो ये जो है टोटल 99% यहीं पे प्रोडक्शन होता है कॉफी का। क्योंकि हेवी रेनफॉल भी है यहाँ पे, इनके पास हेवी रेनफॉल भी है, टेम्परेचर भी इनका जो है 15 से 28 के बीच में होता है। तो ये सारी चीजें आपको कॉफी के लिए होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कॉफी के लिए भी। You can see that these regions only have coffee. Tamil Nadu, Karnataka, large area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो this is for tea and coffee. तो आपको मेनली टी और कॉफी के बारे में क्या देखना है कि कंडीशंस ऑफ ग्रोथ उनका और उनका कल्टीवेशन पैटर्न, यही दो चीज आपको देखना है टी और कॉफी के बारे में। तो दिस वाज द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स इन आवर कंट्री। डिफरेंट क्रॉप्स के हमने 7 मेजर क्रॉप्स के फेवरेबल कंडीशंस, उनका क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब चीजों को हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो होगा एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है, हमने एग्रीकल्चर का जो मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर को देख लिया कि किस तरह से एग्रीकल्चर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं। अब ये ड्राईलैंड क्या होता है? ड्राईलैंड जो होता है, जनरली ड्राईलैंड जो है हम उस रीजन को बोलते हैं जहां रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होता है। कहीं कहीं पे जो डेफिनेशन होता है वो 75 सेंटीमीटर का भी होता है कि 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल को हम ड्राई लैंड बोलेंगे, बट हम 50 सेंटीमीटर पर ईयर के रेनफॉल को हम एक पैरामीटर मानते हैं। तो जिस रीजन्स में इंडिया में 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा, that regions will be called dryland region, and the cultivation that is done, the agricultural practices, that the agricultural crops which are growing over this region will be called dryland agriculture, right? तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक्चुअल में एक क्रॉप कल्टीवेशन मेथड बोल लो आप, या क्रॉप कॉम्बिनेशन बोल लो, जो उस रीजन्स में होता है जहां रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होता है। अब इस इंडिया में पूरे नेट क्रॉप्ड एरिया को अगर देखोगे कि कौन कौन से लैंड को हम, कितने लैंड को क्रॉप करते हैं, तो उस पूरे का लगभग 1/3 से भी ज्यादा, अराउंड 40% ऑफ द लैंड इज अंडर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। मतलब कि हमारा इतना लैंड जो है वो रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर या उससे कम रेनफॉल है हमारे पास। तो इसकी वजह से वहां पे हम क्या कर रहे हैं? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हमारा पूरा राजस्थान देख लो, पूरा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। गुजरात रीजन देख लो, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। ये आपको बुंदेलखंड वाला रीजन देख लो, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। ये जो मिड पेनिनसुलर रीजन है, जो रेन शैडो रीजन है वेस्टर्न घाट का, पूरा ड्राईलैंड रीजन है। तो ये सारे रीजन में 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है, इसलिए हम जो है यहाँ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये मेनली कहां पे स्प्रेड है? तो आपको वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड है और मिड पेनिनसुलर रीजन में है, जो कि शैडो इफेक्ट, जिसका वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स का शैडो इफेक्ट जहां पड़ता है, तो वो सारे रीजन जो है वो ड्राईलैंड के हैं। ठीक है, तब इसमें हमें मेनली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में देखना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के, और क्या स्टेप्स हमें लेना चाहिए इनको इनहैंस करने के लिए, यहाँ की एग्रीकल्चर के स्टेटस को और बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसी में हम इसको चैलेंजेस को भी देख लेंगे कि ये सब इनके चैलेंजेस हैं। तो जो एनुअल वेरिएबिलिटी होती है रेनफॉल की, वो 30% तक होती है इनकी। 30% तक इनकी एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल होती है। मतलब इस साल जो रेनफॉल हुआ अगर इनका, तो अगले साल हो सकता है कि 30% कम रेनफॉल होगा। तो सालाना जो इनका रेनफॉल का उतार चढ़ाव है वो 30% तक होता है। तो ये हो जाता है इनका सबसे पहला फीचर ड्राईलैंड एग्रीकल्चरल वाले रीजन में। दूसरी बात कि इनका जो टोटल रेनफॉल आप देखोगे
तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से कि 25 से 30% से भी कम है। अब ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? आप इवेपोरेशन आप जानते हैं कि जो लैंड से जितने भी पानी जाती है इवेपोरेट होके, उसे हम एक्चुअली इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन नहीं बोलते हैं। क्योंकि जनरली वो कैसे होती है, तो वो पहले प्लांट्स उसको ट्रांसपिरेशन करते हैं और वहां से फिर वो इवेपोरेट होके जाती है, तो इसलिए हम उसको इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब इवेपोट्रांसपिरेशन दो तरह का होता है, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन एंड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन उसको बोलते हैं कि अगर वाटर यहां अवेलेबल होती, मतलब वाटर यहां अवेलेबल होती प्रचुर मात्रा में, तो कितना इवेपोट्रांसपिरेशन होता। अब ड्राई रीजन से सपोज मान लो हाई टेम्परेचर है लेकिन बारिश ही नहीं होती है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन वहां भी हो रही है, लेकिन शायद और पानी होती तो वहां और इवेपोट्रांसपिरेशन होता। तो कितना होता जब पानी अवेलेबल होती, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल, राइट। और एक्चुअल होता है कि कितना हो रहा है। सपोज मान लो कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ठीक, तो अगर 120 सेंटीमीटर रेनफॉल होता और फिर भी सारे इवेपोट्रांसपिरेशन में चले जाते हैं, तो 120 वुड बी कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। और चूंकि रेनफॉल केवल 100 सेंटीमीटर ही हो रहा है, तो 100 सेंटीमीटर ही इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो वो कहते हैं हम आप इसको एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मात्र 25 से 30%, उससे भी कम रेनफॉल यहां होता है। तो आप समझ लो कि कैसा रेनफॉल होता है, क्योंकि ये रीजन, ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है वहां के टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर कैसा है, विंड कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, इन सारे चीजों पे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। तो वहां का टेम्परेचर हाई है, विंड है, तो इन सब तरीके से पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन वहां का बहुत हाई है। लेकिन जो रेनफॉल कितनी है, तो उसके 1/4 भी नहीं है। समझ में आ रही है? तो ये कंडीशंस है ये ड्राई लैंड रीजन्स के। तीसरा है कि जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है यहां पे, वो मात्र 3 से 6 महीना होता है। यानी 6 से 9 महीना का जो पीरियड होता है यहां पे, वो बिल्कुल ड्राई होता है, वहां आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो यू कैन कल्टीवेट, यू कैन डू एग्रीकल्चर ओनली इन 3 to 6 months ओनली। तो यहां ज्यादा से ज्यादा एक क्रॉप्स उपजाए जाते हैं साल भर में। यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो काफी कम है। फिर क्रॉप कॉम्बिनेशंस अगर यहाँ के देखोगे कि कौन कौन से क्रॉप्स मेनली उपजाए जाते हैं, तो यहाँ मिलेट्स उपजाए जाते हैं और ऑयल सीड्स उपजाए जाते हैं। मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब जो है मेनली यहाँ पे उपजाए जाते हैं। यहाँ पे राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन ये सब नहीं होता है, टी कॉफी नहीं होता है, ये सब चीजें। यहाँ पे मेनली जो है वो सारे क्रॉप्स होंगे जिनकी वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम होगी, 50 सेंटीमीटर से कम होगी। तो वो किसकी होगी? तो मिलेट्स की होगी, ऑयल सीड्स की होगी, पल्सेस की होगी। तो यही सब होता है। यहां मेनली आपको सैंडी एंड ड्राई सॉइल मिलेंगे, सैंडी और ड्राई सॉइल मिलेंगे। सैंडी क्यों मिलते हैं? जहां पानी कम होता है वो जनरली सैंडी सॉइल वहां पे बन जाता है, राइट। और ड्राई सॉइल आपको मिलेंगे। यहाँ की जो लैंड कैपेबिलिटी है वो ओवरऑल बहुत लो होती है। लैंड कैपेबिलिटी यानी द कैपेबिलिटी ऑफ लैंड टू सपोर्ट वेजिटेशन, टू सपोर्ट क्रॉप्स, तो ये ओवरऑल बहुत कम होती है। तो इसको बोलते हैं कि लैंड कैपेबिलिटी इज ओवरऑल वेरी लो। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस बात करें तो मेजर चैलेंजेस आप क्या देख लिए? यहाँ पे ड्राई होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। यहाँ जो क्रॉप सीजन होता है वो बहुत छोटा होता है, 3 से 6 महीना ही आप क्रॉपिंग कर सकते हो। जो यहाँ पे सॉइल होती है वो काफी मॉइस्चरलेस होती है, मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब इसके मेन चैलेंजेस हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हम इसकी इंपॉर्टेंस अगर देखें तो सबसे पहले हम देखें इसके सिग्निफिकेंस इसके स्केल में ही आ जाती है कि ये 40% एरिया जो है हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रिवाइव करें, हम इसको जो है हमें ध्यान देना चाहिए। तो जो लार्ज कवरेज है अंडर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इटसेल्फ मेक्स इट वेरी सिग्निफिकेंट, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि न्यूट्रिशियस क्रॉप्स ग्रो करती है। भले ही हम राइस व्हीट न ग्रो करें, बट अगर हम न्यूट्रिशन के टर्म्स में देखें तो मिलेट्स की जो न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टीज होती है वो राइस व्हीट से कहीं अच्छी होती है। उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन रिच फूड होती है वो लोग। जो पल्सेस होते हैं वो प्रोटीन रिच फूड होता है। राइस क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन इज अ गुड न्यूट्रिएंट्स। तो ये प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स होते हैं मेनली। तो ये जो है हमारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। तो इसमें इनकी सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात है कि ये इंडस्ट्रियल क्रॉप्स भी होता है। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स लाइक कॉटन, ग्राउंड नट,
शुगर केन भी यहाँ उपजाए जाते हैं इन रीजन्स में जहां 50 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल है। वहां इरिगेशन के थ्रू हम कॉटन, ग्राउंडनट और शुगर केन भी उपजा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे लिए एक कैश क्रॉप्स भी हमें ये करेंगे, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स भी हमें ये प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे हमारे इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, शुगर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगी, राइट। तो ये सारी चीजें जो है इस इंडस्ट्रीज को फ्लोरिशमेंट के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए इन रीजन्स को हमें ध्यान में देने हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को। इट कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अभी हमने बात कर ली है। यहां आपको नेचुरल पास्चर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, जहां फोडर आपको कल्टीवेशन मिलेगा। वो इसलिए यहां मिलता है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं है, तो नेचुरल पास्चर्स आपको ज्यादा दिखेंगे। अब ये जो है ये प्रमोट करेगा आपको व्हाइट रेवोल्यूशन को और रेड रेवोल्यूशन को। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब डेयरी, राइट, मिल्क प्रोडक्शन होगी। आप नेचुरल पास्चर्स है तो आप लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री यहां पे कर सकते हो, जिससे कि आपके यहाँ मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। आप यहाँ पे मीट प्रोडक्शन कर सकते हो रेड रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल पास्चर्स हैं। तो इस तरीके से ये सपोर्ट करती है ये ड्राईलैंड रीजन। फिर आपको यहाँ पे बायोडीजल प्लांटेशन भी आप यूज कर सकते हो। बायोडीजल जैसे जट्रोफा को के प्लांटेशन को, जितने भी बायोडीजल क्रॉप्स हैं उनको आप यहाँ पे कल्टीवेट करके और इस रीजन को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो दिस ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज हैविंग अ वेरी इमेंस सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री, ठीक है। तो दिस इट्स हाई टाइम वी शुड थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तो ये हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है। अब हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप शुड वी टेक टू रिवाइव और टू डेवलप द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। आप माइक्रो इरिगेशन पे ध्यान दो। माइक्रो इरिगेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर की, नेचुरल वाटर की अवेलेबिलिटी जो है काफी कम है। तो जहां वाटर स्कार्स रीजन है वहां आप वाटर को जुडिशियसली यूज करो। एंड जुडिशियसली यूज कैसे करोगे? तो माइक्रो इरिगेशन से करोगे। तो गवर्नमेंट शुड प्रमोट द माइक्रो इरिगेशन इन दीज रीजन्स। जो माइक्रो इरिगेशन को फैलाने का जो हमारा प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है वो ज्यादा पहले ध्यान देना चाहिए ड्राईलैंड रीजन्स में। फिर हम यहाँ रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन हार्वेस्टिंग करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। फार्म पॉन्ड्स बना सकते हैं। जब भी रेनफॉल होगी तो जो हमारे फार्म्स हैं उसमें पॉन्ड्स होंगे तो वो वाटर को कंजर्व करेंगे, या हम वाटर शेड मैनेजमेंट करेंगे, उसके थ्रू जो है रेन हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। हम यहाँ पे उस तरह के क्रॉप्स नहीं उपजाएंगे जो वाटर इंटेंसिव होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जिसको चाहिए। तो हम वही क्रॉप्स यहाँ पे उपजाएं जो वहां के फेवरेबल कंडीशंस में फ्लोरिश कर सकें, राइट, वहां पे वो परफॉर्म कर सकें। तो उस तरह के हमें क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि आप देखोगे कि विदर्भ खानदेश वाले रीजन जो है ड्राई कंडीशंस है, ड्राईलैंड रीजन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वाटर गजलिंग क्रॉप्स उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं। तो दैट इज नॉट अ गुड क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल प्रैक्टिस देयर। तो उसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वी शुड एकोमोडेट द कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री वहां पे हम कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री के काफी बेनिफिट्स होते हैं। पहला कि अगर आपका क्रॉप्स जो है उसकी अगर फसल बहुत अच्छी नहीं हुई तो आप उसके फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट से आप जो है एक एडिशनल इनकम्स, एडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आपको मिल सकते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है लोगों के लिए इस रीजन्स में। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री होती क्या है कि जब आप एग्रीकल्चर के साथ साथ, क्रॉपिंग के साथ साथ आप ट्रीज को भी ग्रो करते हैं, या साथ साथ आप लाइव स्टॉक को भी रैंचिंग कर रहे हैं, तो ये तीनों एक साथ एक ही लैंड पे कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री में या तो आप ट्री और क्रॉप्स को एक साथ कर रहे हैं, या ट्री, क्रॉप्स और लाइव स्टॉक्स तीनों को कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में हम एग्रो फॉरेस्ट्री को बोलते हैं, ठीक। और लास्ट होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक स्पेशलाइज्ड टाइप का फार्मिंग है जिसको कि अभी बहुत धीरे धीरे जो है ये फैल रहा है। इसको लोग, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है। सुभाष पालेकर नाम के जो एक एग्रीकल्चरिस्ट है, उन्होंने इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को रिवाइव किया, इनफैक्ट कह सकते हैं, जिसमें कि हम जो है इनपुट कॉस्ट को बिल्कुल मिनिमाइज करेंगे, राइट। तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस रीजन्स में। लाइक ये एक तरह का कंजर्वेशनल एग्रीकल्चर है जहां कि हम रिसोर्स को कंजर्व करके और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को देखते हैं। तो दैट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। चलो हम अब बात करते हैं अगला एग्रो फॉरेस्ट्री की। ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कैसे होता है, क्या करते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री में, राइट। Agroforestry is a very sustainable kind of agricultural practices. This is something that we are trying to develop in our country considering the conditions.
We already have a very poor status of our farmers in our country. We already have a very slow growth of agriculture in our country, and as we know that a huge population, a huge scale of population in our country is depending on agriculture. तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम केवल क्रॉपिंग पे ही ध्यान दें, केवल राइस और व्हीट को कल्टीवेट करते रहें, तो हमें बहुत फायदा नहीं मिलेगा, राइट? देयर विल बी वेरियस सेटबैक्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट? तो इसलिए हमें अपने सोर्स को डाइवर्स करना चाहिए। एग्रीकल्चर में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मोनोक्रॉपिंग से हटके एक डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो रिस्क एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर से उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट कैन मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर, राइट? अब ये क्या होता है एग्रो फॉरेस्ट्री? तो एक मेथड्स ऑफ managing and integrating trees, crops and livestock on a common plot of land। यानी कि आप एक ही लैंड के ऊपर आप क्रॉप्स भी उगाओ, साथ साथ आप वहां पे ट्रीज भी ग्रो करो, और साथ साथ अगर हो सके तो आप लाइव स्टॉक भी यहां पे आप शुरू कर दो, राइट? तो अगर आपका क्रॉप बहुत परफॉर्म नहीं किया तो इस ट्रीज के प्रोडक्ट से भी आप कुछ कमा सकते हो, लाइव स्टॉक से जो आपका प्रोड्यूस होगा उससे भी कुछ कमा सकते हो, तो आपकी जो रिस्क होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसीलिए एग्रो फॉरेस्ट्री इसी प्रैक्टिस को बोलते हैं हम, राइट? मतलब कि आप क्रॉपिंग भी कर रहे हो, आप ट्रीज भी ग्रो कर रहे हो, और लाइव स्टॉक रैंचिंग भी कर रहे हो। ये तीनों काम आप एक साथ एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। अब एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके चैलेंजेज हैं, और कैसे जो है हमने क्या पॉलिसी बनाई है उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रो फॉरेस्ट्री किस तरह से हमें एडवांटेजेस है। मैंने तो एक छोटा सा आपको एज ए इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपके जो रिस्क को मिनिमाइज करती है, बट इसके सो मेनी कैसे करती है रिस्क को मिनिमाइज और क्या फायदे हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम वन बाय वन अभी देखेंगे फॉरेस्ट्री के। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के एडवांटेजेस को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक एडवांटेजेस इसके सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं, और एक एडवांटेजेस इसके इन्वायरमेंटल हैं, इकोलॉजिकल हैं। मतलब कि एग्रो फॉरेस्ट्री अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक तरह से आप इन्वायरमेंट को भी कंजर्व कर रहे हो, और दूसरी तरफ से आप अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी सुधार रहे हो। कैसे? तो ये देखना। तो हम सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस में देखते हैं। तो जब भी आप एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ आप फार्मिंग करोगे, इस तरह के प्रैक्टिस करोगे, तो जनरली आपकी क्रॉप यील्ड इंक्रीज होगी। क्यों क्रॉप यील्ड इंक्रीज होगी? क्योंकि अगर प्लांट्स आप बना रहे हो, प्लांट्स आप ग्रो कर रहे हो अलोंग विद द क्रॉप्स, तो पहली चीज कि ये जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे एक तरह से इस सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात है कि ये सॉइल इरोजन नहीं होगा इस प्लांट्स की वजह से। तीसरी चीज है कि इस प्लांट्स की वजह से यहाँ पे मॉइस्चर जो है सॉइल का वो इंटैक्ट रहेगा, और इन सब की वजह से जो आपका एग्रीकल्चरल बेनिफिट होगा वो क्रॉप यील्ड में आपको दिखेगा कि इंक्रीज होगा आपका क्रॉप यील्ड। इससे हो सकता है फर्स्ट क्रॉप सीजन में नहीं हो, सेकंड क्रॉप सीजन में नहीं होगा, लेकिन ओवर द टाइम दिस विल बी द बेनिफिट इन एग्रीकल्चर। दूसरा होता है लाइव स्टॉक बेनिफिट्स। लाइव स्टॉक अगर आप कर रहे हो साथ में, तो आपको उससे भी कुछ आमदनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, इससे भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, राइट? और तीसरी बात क्या है कि लाइव स्टॉक को के लिए आप यहाँ पे पास्चर्स को भी, आप फोडर को भी कल्टीवेट कर सकते हो, प्लांट्स के भी जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी उनके काम आ जाएंगे, राइट? और जो ये लाइव स्टॉक हैं, तो इनसे जो गोबर निकलता है इसको आप आप मैन्योर यूज कर सकते हो अपने क्रॉप्स में, तो इससे भी आपको बेनिफिट हो जाएंगे। तीसरा बेनिफिट क्या होता है कि ये प्रो पुअर होता है। प्रो पुअर इसको क्यों बोलते हैं? गरीब लोगों के लिए ये क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। क्या इन्वेस्टमेंट आपको इसमें चाहिए? पेड़ लगाना है आपको, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है इनपुट पे, तो लो इन्वेस्टमेंट इसके लिए होता है। चौथा होता है ये विमेन फ्रेंडली भी होता है। विमेन फ्रेंडली क्यों होता है? क्योंकि माना जाता है कि हम जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं वो विमेन जो है इजिली ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है फेमिनाइजेशन की तरफ हो रहा है, एग्रीकल्चर का फीमेल लेबर्स बढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से जो है विमेन फ्रेंडली भी होगा। ये विमेन फ्रेंडली होगा क्योंकि अपने ही फार्म में उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जा रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो रही है, जिसकी वजह से उनका एम्पावरमेंट हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से जो एग्रो फॉरेस्ट्री है एक विमेन फ्रेंडली आप इसको बोल सकते हैं कि ये प्रैक्टिस है।
ये रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। कैसे रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है? तो रूरल इकोनॉमी क्या होती है, मतलब एग्रो इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है। तो एक तरह से आपको जो वुड का जो बिजनेस है वो भी आपका डेवलप हो रहा है, एक तरीके से आपका डेयरी का भी बिजनेस डेवलप हो रहा है रूरल में, एक तरह से आपका क्रॉप कल्टीवेशन का भी हो रहा है, क्रॉप्स का भी हो रहा है। तो इस तरह से ये सपोर्ट करती है रूरल इकोनॉमी को। फिर आपका इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी यहां होता है। अब बहुत सारे एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो आपको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा एग्रो फॉरेस्ट्री में। फार्मिंग में जितना होता था उससे कहीं ज्यादा होगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि आप जब मार्केटिंग करेंगे इन सब चीजों का तो वहां भी इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है आपके। तो ऑल इन थिंग्स के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रही है। फूड सिक्योरिटी भी ये इंश्योर कर रही है, फूड सिक्योरिटी भी आपको इंश्योर करेगी, क्योंकि आपको अब फूड के जो सोर्सेस हैं आप इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी भी होगी। न्यूट्रिशनल इंरिचमेंट भी होगा। न्यूट्रिशनल इंरिचमेंट कैसे होगा? तो मिल्क प्रोडक्शन होगा, मीट प्रोडक्शन होगा, तो इससे क्या होगा? न्यूट्रिशनल इंरिचमेंट हो रहा है, फूड सिक्योरिटी हो रही है। तो ऑल दीज आर कमिंग अंडर द सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज हो गए। अब सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज के बाद हम बात करेंगे किसकी? तो इन्वायरमेंटल एडवांटेज, इकोलॉजिकल एडवांटेज। इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री का? सॉइल कंजर्वेशन होगा। कैसे? क्योंकि सॉइल का इरोजन जो है वो रुकेगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो रूट्स जो प्लांट्स के होते हैं वो सॉइल को इंटैक्ट रखते हैं, जिसकी वजह से एक रन ऑफ की वजह से इरोजन नहीं होता है। तो सॉइल कंजर्वेशन हो रहा है। इनफैक्ट फर्टिलिटी भी बढ़ रही है। इंप्रूव्ड सॉइल क्वालिटी थ्रू मॉइस्चर रिटेंशन एंड ह्यूमस एडिशन। अब सॉइल की मॉइस्चर रिटेंशन हो रही है, ह्यूमस एडिशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? क्वालिटी जो सॉइल की है वो इंप्रूव हो रही है। ग्रीन कवर, एक ग्रीन कवर भी आपको मिल रहा है। कार्बन सिंक जोन आपको एक क्रिएट हो रहा है, कार्बन स्टॉक आपका हो रहा है, ग्रीन कवर हो रहा है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, पेड़ लगाएंगे तो उससे आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होगा। सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन अपने इन्वायरमेंट में पड़ा है कि जो कार्बन होता है एटमॉस्फेयर से, ये जो प्लांट्स जो हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर एनर्जी सेविंग होगा, आपकी एनर्जी भी सेविंग होगी इसकी वजह से। कैसे होगी? तो जैसे मान लो कि आपको ये प्लांट्स को यूज कर सकते हो, एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हो आप प्लांट्स प्रोडक्ट्स को, लकड़ियों को। प्लस आप जो है जो गोबर होता है आप उसको यूज कर सकते हो मीथेन बनाने के लिए, ठीक है। प्लस जो है आपको जो काऊ डंग केक होता है उसको भी आप फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हो। तो कई तरह से आप एनर्जी भी आपको इसको ये दे रही है। इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्लांट्स लगाओ आप यहाँ पे, तो इससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज भी होगी। फिर आप इसको हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस में भी ये सपोर्ट करेगा, इवेपोट्रांसपिरेशन को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से रेनफॉल होगी रीजन में ज्यादा फॉरेस्ट कवर होने की वजह से, तो हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस भी होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रही है सॉइल में, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा। तो ये सारे आपके इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस हो जाएंगे एसोसिएटेड विद द एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर लार्ज स्केल पे लोग एग्रो फॉरेस्ट्री अगर स्टार्ट करते हैं तो ये सारे एडवांटेजेस ओवर द टाइम मिलेंगे, ठीक है, इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, बट विद टाइम यू विल गेट दिस एडवांटेजेस अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वायरमेंट ऑल्सो, the way it was under the category of socio-economic. So these are the advantages of agroforestry. Agroforestry के ये advantages हैं। अब चैलेंजेस क्या है एग्रोफॉरेस्ट्री के? चलो हमने मान लिया एडवांटेज है इसके, हम शुरू कर दिया एग्रोफॉरेस्ट्री, तो हमें कई तरह के चैलेंजेस आएंगे। अभी हमने जितनी बात बोल दी वो उतना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसे कि हमें देखने की जरूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज है लीगल इशू। लीगल इशू क्या होता है? अब होता दिक्कत क्या है कि लोग जो है अपने फार्म पे बहुत सारे पेड़ लगा दिए लोगों ने, और ये सोच के कि भाई हम इस पेड़ को काट के बेचेंगे लकड़ियों को और कमाएंगे। अब जब उन्होंने लगा दिया और जब काटने जाएंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पहुंच जाएंगे, दुनिया भर के डिपार्टमेंट एजेंसीज पहुंच जाएगी कि आप कैसे काट दिए, आपको हम पेनलाइज करेंगे, आपको हम जो है केस करेंगे आपके ऊपर। तो ये लीगल इश्यूज बहुत बड़े पंगे हैं। तो लोगों को लगता है कि हम प्लांट लगाएंगे क्यों भाई, प्लांट लगा के इंतजार करेंगे और बाद में जब काटने जाएंगे तो ये पहुंच जाएंगे, तो उससे अच्छा हम लगाएं ही नहीं, अपना हम सरदर्दी क्यों पाले, क्यों अपना अलग से मेहनत करें जब हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो लोगों को ये लीगल इश्यूज की वजह से ना बेनिफिट नहीं दिख रही है एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो इसको रिजॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग इश्यूज कि चलो ठीक है, प्लांट्स आपने उपजा लिया, बहुत सारी लकड़ियां आपके पास प्रोड्यूस हो गई, आप कहां बेचोगे, क्या मार्केटिंग करोगे इसका, आपको कुछ नहीं पता है कि हम कौन हमारी लकड़ियां खरीदेगा, तो मार्केटिंग इश्यूज है। मतलब ओपन मार्केट ऐसे अवेलेबल नहीं है कि हाँ भाई आप जो है जिसको जो लकड़ी बेचनी है आ जाओ अपना प्रोड्यूस बेच दो एग्रो फॉरेस्ट्री का। मार्केटिंग इशू है। इश्यूज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स भी है, लैंड रिफॉर्म्स का भी इश्यूज है। बहुत सारे लैंड्स जो हैं वो लॉक्ड हैं अभी भी, राइट, लीगल इश्यूज में, जिसकी वजह से कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इशू ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है। मोस्टली आप देख लो, मोस्टली हमारे यहाँ जो लैंड है वो कैसे हैं, टेनियर बेसिस पे हैं। जो टेनेंट्स हैं वो जो है ऑनर से लैंड को लीज पे लिए हुए हैं।
तो लीज पे लिए हुए हैं, तो उनका लैंड नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम इसमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम यहाँ पे फॉरेस्ट उपजा दें, और बाद में हमारा जो ऑनर है बोला कि हाँ जी अब खाली कर दो, आप हमारा लैंड होगा। तो उस तरीके से जो टेनेंट्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी इंसेंटिवाइज्ड, दे डू नॉट फाइंड इट वेरी ल्यूक्रेटिव बिकॉज इट इज नॉट देयर ओन लैंड। तो जो यहाँ पे ऑनरशिप उनकी होती है अगर, तो वो शायद इस तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं, लॉन्ग टर्म जो है प्रैक्टिसेस करते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स की वजह से एक चैलेंजेस है कि एग्रो फॉरेस्ट्री सक्सेसफुल नहीं होती है। इनएडिक्वेट रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारे पास बहुत ज्यादा अभी रिसर्च नहीं है कि कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, मार्केट नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है हमने डेवलप नहीं करी है। तो हमें अभी इनएडिक्वेट रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक बड़ा चैलेंज है एग्रो फॉरेस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने में। और फिर लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फिनेंशियल रिसोर्स लाइक क्रेडिट, इंश्योरेंस, इट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। अभी बैंक्स जो है फसल के लिए तो दे देते हैं लोन, आप बोलोगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है, नहीं देंगे लोन, ठीक है, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री अभी उतना ज्यादा इस तरह से ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस नहीं लगता है लोगों को, जिसकी वजह से बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज भी उतने ज्यादा मतलब ये नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए लोन्स देने में। तो ये मेजर चैलेंजेस है जिसकी वजह से एग्रो फॉरेस्ट्री जो है बहुत सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है। और इसके लिए अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो हमारे गवर्नमेंट ने नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाई 2014 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई जिसे हम बोलते हैं नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। और उस टाइम में ये जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी थी, वो इंडिया पहला कंट्री बना जो पर्टिकुलरली एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए एक सेपरेट पॉलिसी लाई 2014 में। तो दैट टाइम इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड हु इनेक्टेड अ सेपरेट पॉलिसी फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। अब हमें देखना है कि इस एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या अप्रोचेस हमने अपनाए, हमारे क्या अप्रोचेस थे, हम क्या करना चाह रहे थे, और वेदर इट इज कैसा है हमारे लिए, मतलब ये बेनिफिशियल है कि नहीं। तो कौन कौन से अप्रोचेस हमने अपनाया। सबसे पहले हमने एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप की बात करी कि हम नेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे, किसके लिए, तो फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो हमने जो है एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है करने की हमें जरूरत लगी, और इसको हमने प्रोविजंस डाले अपने पॉलिसी में। फिर हमने बात करी कि सिंपल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को हम ये करेंगे, जो भी चीजें जो रेगुलेट करेंगी एग्रो फॉरेस्ट्री को, उसको उसकी जो मैकेनिज्म होगी, उसकी जो प्रोसीजर होगी, वो काफी हम सिंपल रखेंगे, ताकि जो लोग होंगे, जो फार्मर्स होंगे, उन्हें बहुत दिक्कत ना हो। फिर हमने एक साउंड डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने की प्रोविजंस लाई कि हम एक डेटाबेस बनाएंगे कि कहां पे कैसे कितना एग्रो फॉरेस्ट्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम एक डेवलप करेंगे, साउंड डेटाबेस को डेवलप करेंगे रिलेटेड टू द एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट। क्योंकि इनपुट होना बहुत जरूरी है कि पॉलिसी कैसे काम कर रही है, सही है, क्या गलत है, क्या चैलेंजेस है, क्या चेंजेस करने हैं। फॉर दैट यू नीड टू हैव ए साउंड डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर हम बात करेंगे कि बात किया थे हमने कि इन्वेस्ट करेंगे हम किसमें, तो रिसर्च में, एक्सटेंशन में और कैपेसिटी बिल्डिंग में। हम रिसर्च करेंगे कि कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, किस तरह के प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, किस सॉइल पे हमें किस तरह के एग्रो फॉरेस्ट्री को हम कैसे करना चाहिए। प्लस हम एक्सटेंशन सर्विसेज की भी बात करेंगे कि हम फार्मर्स को एडुकेट करेंगे, उनको हम अवेयरनेस जनरेशन के लिए कैंपेन चलाएंगे, तो ये एक्सटेंशन सर्विस में कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम इसको करने की बात किए थे अपने पॉलिसी में। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ये था। फिर हमारा क्या था कि हम फार्मर्स को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को, यानी कि कौन कौन से जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं जो जल्दी से ग्रो करेंगे। अब कोई प्लांट कोई फार्मर लगाएगा और उसको पता है कि 20 साल बाद ये ग्रो के होगा, तो उसको वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं लगेगा कि 20 साल बाद अब कौन देखा है आगे, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं होगा उस तरह के प्लांट्स लगाने के लिए। तो हमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है इसको प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को, ताकि उनको लगे कि हाँ जी 5 साल में ये मेरा पेड़ खड़ा हो जाएगा और हमारे पास एक एसेट बन जाएगा। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स जो है गवर्नमेंट को इंश्योर करना। फिर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और इंश्योरेंस कवर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे हम जो है क्रॉप्स के लिए करते हैं, उसी तरह से एक क्रेडिट और इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करने की जरूरत है। किसके लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। फिर हम इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन को वहां बढ़ाएंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज को जोड़ सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस से। जैसे प्लांट्स ग्रो कर रहा है तो ये इंडस्ट्रीज इनसे डील कर ले कि हाँ जी आप प्लांट्स ग्रो करो, आपकी लकड़ियों को हम खरीद लेंगे। तो इस तरह के कुछ हम मैकेनिज्म्स को डेवलप करेंगे, या इस प्लांट्स का जो प्रोड्यूस होगा, फल हो या कुछ भी हो, तो ये सारी चीजें जो है ये इंडस्ट्रीज से उसको करेक्ट कर देंगे हम। स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स एक्सेस टू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स, फार्मर्स को जो मार्केट होगा इस प्रोडक्ट के लिए उसको हम डेवलप करेंगे, ताकि फार्मर्स को जो है एक सहूलियत हो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की। फिर हम करेंगे कि फार्मर्स को इंसेंटिव्स दे,
ताकि वो एडॉप्ट करें एग्रो फॉरेस्ट्री। बहुत तरह के इंसेंटिव्स होते हैं फार्मर्स को, आप दे सकते हैं सब्सिडी के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, जिसकी वजह से कि वो एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ जाए, या फिर उसका लोन के इंटरेस्ट कम करके, कुछ भी मतलब ऐसे कर सकते हो। और प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर रिन्यूएबल बायोमास बेस्ड एनर्जी, यानी हम एग्रो फॉरेस्ट्री को यूज करेंगे किसके लिए? बायोमास जनरेशन बेस्ड एनर्जी के लिए। चाहे हम जो जट्रोफा प्लांटेशन को प्रमोट करें या जैसे भी करें, मतलब हम जो एनर्जी प्लांटेशन के लिए हम इसको प्रमोट करेंगे थ्रू द एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये हमारा पूरा जो है विजन रहा है उस पॉलिसी में, ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, जो भी चैलेंजेस हमने देखे, तो कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर रहे हैं। हमें चैलेंज क्या दिखे थे? क्रेडिट और इंश्योरेंस के दिखे थे, वो भी है यहाँ पे। हमें क्या दिखे थे कि कहां से उनको अच्छा गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा, वो भी हमने देखा। यहाँ मार्केट का हमें चैलेंज था कि फार्मर्स के पास मार्केट नहीं है अपने एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोड्यूस को बेचने के लिए, तो उसको भी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में लाई। उसके बाद हमने जो है सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी बेस्ड एनर्जी क्रॉप्स, इंडस्ट्री से भी हमने इनको कनेक्ट किया। हमने रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को भी सिंपल करने की बात करी है। तो इस तरह से हमने मोर और लेस हम अपने इस पॉलिसी के थ्रू हम इसको काफी हद तक रिजॉल्व करने के, इसके चैलेंजेस को हमने कोशिश किया है। अब आगे ये देखना है कि हमारी जो ये पॉलिसी बनी है वो कितने लेवल तक सक्सेस होती है, कैसे हम आने वाले दिनों में हम इस नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी के थ्रू हम एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर पाए अपने कंट्री में, ये अब देखने की बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी और ऑल अबाउट द एग्रो फॉरेस्ट्री। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एग्रीकल्चरल पैटर्न डिस्कस कर लिया, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया, और नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, पर्टिकुलरली एग्रो फॉरेस्ट्री को हमने एक डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो दिस वाज द बेसिक थिंग्स अबाउट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हमने क्रॉपिंग को देख लिया, हमने उनके डिटर्मिनेंट्स को देख लिया, इरिगेशन के फॉर्म्स को देख लिया। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स फ्रॉम द पेपर 3 एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है हमने यहाँ पे देख रखी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर, राइट? So very good, and I hope you all enjoyed the lecture, and from the next we shall start about the resource and industries that we have to do in the further classes. So this was all about agriculture. Thank you.